عید کی شام طلاق کے کاغذات جب بالکل عالیہ کے سامنے رکھے گئے تو باہر گلبرگ کی رہائشی سوسائٹی پٹاخوں کی آواز، بچوں کی ہنسی اور رنگین جھالروں کی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ لیکن احمد خاندان کے بڑے ڈرائنگ روم میں اچانک اتنی گہری خاموشی چھا گئی کہ عالیہ کو اپنی سانس بھی سنائی دینے لگی۔ مہمانوں کے آنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ عالیہ نے سامنے رکھے کاغذات کو دیکھا۔ اوپر بڑے حروف میں لکھا تھا: طلاق کے لیے باہمی رضامندی کی درخواست۔ اس کی نظریں کچھ لمحے اس سطر پر ٹھہری رہیں، پھر اس نے سر اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا۔ اس کی کلائی پر چمکتی ہوئی گھڑی وہ نہیں تھی جو عالیہ نے شادی کی 5ویں سالگرہ پر دی تھی۔ یہ نئی گھڑی تھی جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ کمپنی کے ایک غیر ملکی کلائنٹ نے تحفے میں دی ہے۔ عالیہ جانتی تھی کہ وہ کلائنٹ نہیں بلکہ زینب تھی۔ احمد نے کہا: دستخط کر دو۔ اس کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ جھجک۔ وہ اسے ایسے بول رہا تھا جیسے کسی میٹنگ سے پہلے اپنے اکاؤنٹنٹ سے معاہدے پر دستخط کرواتا ہو۔ عالیہ نے کرتا احتیاط سے تہہ کر کے صوفے کے کنارے رکھا۔ احمد نے کہا: آج ہی کر دو، کل صبح میرے وکیل کراچی جا رہے ہیں، کاغذات ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ آج عید ہے اس لیے چاہتا ہوں کہ کوئی تماشا نہ ہو، رشتہ دار آنے والے ہیں، جب وہ چلے جائیں تو پھر تم اپنا سامان لے کر نکل جانا۔ عالیہ نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ یہی وہ چہرہ تھا جسے اس نے 11 سال پہلے لاہور یونیورسٹی کے قریب ایک چھوٹے سے چائے کے اسٹال پر پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ تب احمد کے پاس اچھی نوکری نہیں تھی، اس کے جوتے گھسے ہوئے تھے، قمیض کی آستین پر سیاہی کا داغ تھا، اور جیب میں اتنے پیسے تھے کہ 2 چائے اور ایک سموسہ خرید سکے۔ اس نے اس سے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ میرے پاس ابھی کچھ نہیں عالیہ، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایک دن تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ عالیہ نے تب جواب دیا تھا کہ مجھے چیزیں نہیں چاہیے، مجھے ایسا گھر چاہیے جہاں کوئی کسی کو چھوٹا نہ محسوس کرائے۔ آج اسی آدمی نے ان کے درمیان 7 سال کی شادی اور 4 سال کی جدوجہد کو کاغذ کے چند پنوں میں سمیٹ دیا تھا۔ اس نے پوچھا: اس میں کیا وجہ لکھی ہے؟ احمد کی بھنوریں اٹھیں۔ ہمارے خیالات نہیں ملتے، عالیہ نے کہا۔ کب سے؟ جب تک کمپنی چھوٹی تھی تب تک ہمارے خیالات ملتے تھے، جب تک تم رات 2 بجے گھر آتے تھے اور میں تمہارے لیے گرم ناشتہ بنا کر بیٹھی رہتی تھی، تب تک ملتے تھے، جب تک بینک نے قرض دینے سے انکار کر دیا تھا اور تم نے میرے کندھے پر سر رکھ کر کہا تھا کہ سب ختم ہو گیا، تب تک ملتے تھے۔ پھر اچانک کس دن ہمارے خیالات الگ ہو گئے۔ احمد نے لمبی سانس لی جیسے کسی نااہل ملازم کو سمجھا رہا ہو۔ عالیہ، ہر بات کو جذباتی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں۔ میں آج اس جگہ نہیں ہوں جہاں 10 سال پہلے تھا، اور تم وہیں ہو۔ الفاظ بہت سادہ تھے مگر ان کی تیزی کسی تانے سے بڑھ کر تھی۔ احمد کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ نیچے پارکنگ میں اس کی نئی سیاہ کار عید کی روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ اس نے کہا: سچ سننا چاہتی ہو تو سنو، تم پچھلے کئی سالوں سے گھر میں ہو، تمہارا اپنا کوئی پیسہ نہیں، کوئی پیشہ ورانہ شناخت نہیں، تمہاری دنیا راشن، نماز، باورچی خانے، رشتہ داروں کے فون اور گھریلو ملازمین تک محدود ہے۔ میری دنیا الگ ہو چکی ہے۔ میں سرمایہ کاروں سے ملتا ہوں، سرکاری افسروں سے بات کرتا ہوں، غیر ملکی وفود کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ مجھے اپنے ساتھ ایسی بیوی چاہیے جو اس ماحول میں آسانی محسوس کرے۔ عالیہ نے پوچھا: کہ کیا ایسی عورت چاہیے جسے دیکھ کر تمہارے سرمایہ کار متاثر ہوں؟ احمد کا چہرہ تنا۔ بات کو زینب تک مت لے جاؤ، عالیہ نے کہا۔ میں نے اس کا نام نہیں لیا۔ کچھ لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر احمد نے نظر پھیر لی۔ یہی جواب کافی تھا۔ عالیہ پچھلے 8 مہینوں سے تبدیلیاں دیکھ رہی تھیں۔ پہلے احمد ہفتے میں 1 2 رات دیر سے لوٹتا تھا، پھر تقریباً ہر رات اس کے کپڑوں پر کسی اجنبی عورت کی خوشبو آتی۔ وہ فون الٹا رکھ کر سوتا۔ کھانے کے وقت بھی پیغامات آتے تو کمرے سے باہر چلا جاتا۔ زینب کو کمپنی میں رابطہ سربراہ بنا کر لانے کے بعد اس نے پہلی بار عالیہ کو کسی رسمی تقریب میں جانے سے روکا تھا۔ اس نے کہا تھا: تم وہاں بے چین محسوس کرو گی۔ بعد میں خبروں کی ویب سائٹ پر عالیہ نے زینب کو اس کے بالکل قریب کھڑا دیکھا تھا۔ زینب کا ہاتھ احمد کے بازو کو چھو رہا تھا، اور دونوں کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تب بھی عالیہ نے سوال نہیں کیا تھا۔ وہ بے وقوف نہیں تھی، وہ صرف آخری سچ کو خود سامنے آنے دینا چاہتی تھی۔ اس نے طلاق نامے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا: میرے لیے کیا طے کیا ہے؟ احمد فوراً کاروباری انداز میں آیا: 50 لاکھ۔ باہر والے گھر پر کوئی دعویٰ نہیں ہوگا، کمپنی کے حصص پر کوئی حق نہیں مانگو گی، گاڑی اور دیگر جائیداد میرے نام پر ہے۔ 7 کروڑ 50 لاکھ تمہارے لیے کافی ہیں۔ چاہو تو فیصل آباد میں چھوٹا فلیٹ لے سکتی ہو یا لاہور کے مضافات میں رہ سکتی ہو۔ عالیہ کے ہونٹوں پر بہت ہلکی مسکراہٹ آئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ 7 سال کی بیوی کو گھر سے نکالنے کا یہی مناسب قیمت ہے؟ احمد نے کہا: اسے قیمت مت کہو، یہ مالی امداد ہے۔
तुम्हारे पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं। अगर नहीं मानोगी तो कानूनी कार्रवाई लंबी होगी। आलिया को अचानक याद आया कि 3 साल पहले कंपनी के मुलाजमीन का 2 माह का तनख्वाह देने तक पैसे नहीं थे। अहमद रात पर बालकोनी में बैठा रहा था। अगले हफ्ते एक निजी सरमायाकारी फंड ने 100 करोड़ देने पर इत्तफाक किया था। अहमद ने उस दिन मस्जिद में नजराना चढ़ाया और कहा था कि अल्लाह ने उसकी मेहनत देख ली। उसने कभी नहीं पूछा कि वो फंड अचानक क्यों आ गया। उसने ये भी नहीं पूछा कि जिन 2 बड़े ग्राहकों ने कंपनी को पहला कौमी मुआहिदा दिया, वो आलिया के मेके के पुराने कारोबारी राब्तों में से क्यों जुड़े हुए थे। आलिया ने उसे पूछने पर कभी मजबूर नहीं किया। वो चाहती थी कि उसका शौहर खुद एतमाद रहे। उसे लगता था कि शादी का मतलब यही है कि कभी एक साथी आगे चले और दूसरा अपनी कमजोरियां ज़ाहिर न करे। आज उसे पहली बार समझ आई कि उसने अहमद का खुद एतमादी बचाते बचाते उसके गरूर को इतना बढ़ा दिया था कि उसमें उसके लिए कोई जगह नहीं बची। अचानक मरकजी दरवाजे की घंटी बची। अहमद फौरन सीधा खड़ा हो गया। आलिया ने सोचा रिश्तेदार वक्त से पहले आ गए होंगे, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही फातिमा अंदर आईं। उनके हाथ में मस्जिद से लाया हुआ नजराना था। उनके पीछे ज़ैनब खड़ी थी। ज़ैनब ने गहरे सुर्ख रंग का रेशमी दुपट्टा पहना था, जिसकी सुनहरी किनारी कमरे की रोशनी से चमक रही थी। उसके बालों को स्टाइल किया गया था। कानों में फखराज के झुमके थे और हाथ में महंगे तहाइफ के 3 पैकेट। उसने शीरीं आवाज़ में ईद की मुबारकबाद दी। उसकी निगाहें पहले अहमद पर गईं, फिर मेज़ पर रखे तलाक के कागजात पर और आखिर में आलिया के चेहरे पर टिक गईं। हैरत का इजहार एक लम्हा देर से आया। कहा, क्या मैं गलत वक्त पर आ गई? फातिमा ने फौरन कहा, नहीं बेटा, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। कुछ पुराने काम ख़त्म हो रहे हैं, तभी तो नए मुबारक काम शुरू होते हैं। आलिया ने फातिमा की तरफ देखा। आपको पहले से पता था? फातिमा ने नजराने की प्लेट मेज़ पर रखी। अहमद अपनी माँ से बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? कई महीनों से उसे परेशान देख रही थी। अब जाकर उसने सही फैसला किया है। आलिया ने कहा, सही फैसला? सिर्फ बावर्ची खाने संभालने से शादी नहीं चलती। जब मर्द आगे बढ़ता है तो बीवी को भी उसके लायक बनना पड़ता है। तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। आलिया को वो इब्तदाई साल याद आए जब फातिमा रिश्तेदारों के सामने कहती थी कि आलिया के आने से उनके बेटे की किस्मत खुली। जब अहमद की कंपनी नुकसान में थी तो फातिमा अक्सर फ़ोन करती थी कि मेरी बहू इसे संभाल कर रखना, वो बहुत टूट गया है, तुम्हारे बगैर कुछ गलत ना कर बैठे। फिर कंपनी बढ़ी। अखबारों में अहमद के साथ साथ उसका नाम छपा। पुराना फ्लैट छोड़कर ये बंगला खरीदा। फातिमा की ज़बान धीरे धीरे बदल गई। पहले आलिया ख़ानदान की बरकत थी, फिर आम बहू बनी, इसके बाद पसमानदा ख्यालात वाली घरेलू औरत। आज वो सिर्फ एक रुकावट थी। ज़ैनब ने तहाइफ के पैकेट नीचे रखे और आलिया के करीब आई। आलिया बाजी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं चाहती थी कि अहमद आपको वक़्त देकर समझाएं, लेकिन कभी-कभी 2 अच्छे लोग भी साथ नहीं रह पाते और तीसरा अच्छा इंसान उनके दरमियान आने का इंतज़ार करता है। आलिया ने पूछा, तुम्हें यह हक किसने दिया? ज़ैनब का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हुआ और उसने फ़ौरन मुस्कुराहट वापस लाई। आप गम में हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। मैं बुरा नहीं मानूंगी। अहमद ने तेज़ आवाज़ में कहा, बस करो आलिया। आलिया ने कहा, मैंने सिर्फ सवाल किया है। ज़ैनब यहाँ हमारे कारोबारी मेहमानों के इंतजामात देखने आई है। तुम उसे जलील नहीं कर सकती। आलिया ने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। जिस घर में वो सालों से रह रही थी, उस घर में आज उसके शोहर की महबूबा मेहमान और खुद बेजारी औरत बन गई थी। फातिमा की नज़र अचानक आलिया के हाथों पर पड़ी। ये चूड़ियाँ उतारो। आलिया ने अपनी कलाई की तरफ देखा। सुर्ख और सुनहरी काम वाली 2 रवायती चूड़ियाँ उसकी सास ने शादी के वक्त पहनाई थी। फातिमा ने तब कहा था कि ये उनकी दादी की थी और घर की बड़ी बहू को दी जाती हैं। आलिया ने पूछा, क्यों? फातिमा ने कहा, अब तुम इस घर की बहू नहीं रहोगी। हुसैन खानदान की चूड़ियाँ अपने साथ नहीं ले जा सकती। आलिया ने कहा, अभी तलाक हुई नहीं। फातिमा ने कहा, वही हो जाएगी, अभी उतार दो, बाद में बहाने मत बनाना। अहमद ने कुछ नहीं कहा। यह खामोशी आलिया के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। उसने धीरे धीरे पहली चूड़ी उतारी, फिर दूसरी। सालों तक मुसलसल पहनने से कलाई पर हल्की सफ़ेद लकीरें बन गई थीं। उसने दोनों चूड़ियाँ फातिमा की हथेली पर रख दी। फातिमा ने इत्मीनान से उन्हें देखा और ज़ैनब की तरफ मुड़कर कहा, तुम्हारे हाथ पतले हैं, थोड़ा ढीला होगा, लेकिन सुनहार ठीक कर देगा। आलिया का चेहरा बेहिस रहा। ज़ैनब ने झूठी नरमी से कहा, अरे नहीं आंटी, ये तो ख़ानदान की चीज़ है, मैं कैसे? फातिमा ने हंसते हुए कहा, तुम ही तो ख़ानदान बनने वाली हो। ज़ैनब ने अहमद की तरफ देखा, जैसे उसे उम्मीद न थी कि बात इतनी जल्दी खुलकर कह दी जाएगी, लेकिन उसने फिर भी कोई एतराज़ नहीं किया। आलिया के अंदर आखिरी वहम भी इस लम्हे ख़त्म हो गया। उसने तलाकनामे के सफ़हात पलटे।
शराइत एहतियात से तैयार की गई थी। घर, गाड़ी, कंपनी, सरमायाकारी, जेवरात, सब कुछ अहमद का। 7 करोड़ 50 लाख की रकम को प्यासी की तरह लिखा गया था। यहाँ तक कि यह भी शामिल किया गया था कि मुस्तकबिल में आलिया कंपनी के कामों, ग्राहकों या सरमायाकारों से किसी किस्म का राब्ता नहीं करेगी। इस सत्र पर उसकी नज़र कुछ देर ठहरी। अहमद ने शायद समझा कि वो डर गई है। उसने कहा, फिक्र न करो, तुम्हारा कंपनी से वैसे भी कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ कानूनी रसूमात है। आलिया ने आंखें उठाईं। बिल्कुल, सिर्फ रस्मियात। उसने कलम उठाया। अहमद के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ी। फातिमा के होंठों पर फतह की मुस्कुराहट आ गई। ज़ैनब थोड़ा आगे झुकी, जैसे वो इस लम्हे को अपनी आंखों से पी लेना चाहती हो। आलिया ने बगैर कपकपाहट के अपने पूरे नाम के दस्तखत कर दिए। आलिया रहमान। कलम रखते ही उसने पूछा, मेरे जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अहमद ने जवाब दिया, आज रात कुछ अहम लोग आने वाले हैं। कल डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में सरमायाकारों के साथ रात का खाना है। अगले हफ्ते हमारी नई फंडिंग का ऐलान हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि किसी को भी हमारे ज़ाती तनाव का पता ना चले, और ज़ैनब तुम्हारे साथ जाएगी। वो कंपनी की राब्ता सरबराह है। आलिया की आवाज़ बुलंद हुई। इस घर में भी? बाहर एक पटाखा फटा और खिड़कियों के शीशे कांप के। आलिया ने पुरसकून लहजे में कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैंने दस्तखत कर दिए हैं। अहमद ने कागजात उठाकर जांचे, फिर वह मुस्कुराया। अच्छा किया, कम अज़ कम आखिर में समझदारी दिखाई। आलिया ने कहा, एक सवाल और, क्या कभी पछतावा हुआ? तो अहमद हंस पड़ा। मुझे नहीं, तुम शायद अभी भी ये समझती हो कि तुम्हारे जाने से मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी। आलिया, कंपनी इस साल 400 करोड़ की मालियत तक पहुंचने वाली है। मेरी सालाना आमदनी 3 करोड़ से ज़्यादा है। अगले दौर के बाद ये और बढ़ेगी। मेरे पास वो सब है जो मैंने चाहा था। उसने ज़ैनब की तरफ एक लम्हा देखा। और अब मैं ऐसी ज़िंदगी चाहता हूँ जो मेरी मौजूदा हैसियत के मुताबिक। आलिया ने सर हिलाया। फिर ठीक है। वो ऊपर अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और पहले से तैयार एक दरमियाने साइज़ का सूटकेस निकाल लिया। दरहकीकत उसने ये सूटकेस इस सुबह पैक कर लिया था। अहमद को लगा था कि वो सब कुछ अचानक कर रहा है, लेकिन आलिया कई हफ्तों से इसी लम्हे का इंतज़ार कर रही थी, जब वो खुद आखिरी फैसला सुनाएगा। उसने कपड़ों के साथ सिर्फ चंद किताबें, अपनी वालदा की पुरानी घड़ी, 2 डायरियाँ, एक चांदी का छोटा लॉकेट और भूरे चमड़े में लिपटी एक फाइल रखी। अलमारी में लटकती महंगी साड़ियाँ उसने वहीं छोड़ दी। शादी के ज़ेवरात पहले से बैंक लॉकर में थे, लेकिन वो भी उसके लिए अहम नहीं थे। जिन एशिया से जज्बात जुड़े थे, वो ज़्यादातर इस घर में नहीं, उसके अंदर थे। जब वह सूटकेस लेकर नीचे आई तो ड्राइंग रूम में मौसीकी चल चुकी थी। फातिमा घरेलू मुलाजमीन को हदायत दे रही थी। ज़ैनब इसी तस्बीह के सामने, जिसे आलिया ने सजाया था, तस्बीह दुरुस्त कर रही थी। अहमद ने उसकी तरफ देखा। बस इतना सामान? आलिया ने कहा, मेरा असल सामान कभी इस घर में था ही नहीं। अहमद समझा नहीं। उसने सिर्फ कंधे उचका दिए। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते फातिमा की आवाज़ आई, एक मिनट। आलिया रुकी। फातिमा ने उसके गले की तरफ इशारा किया। वो हार भी छोड़ दो। कमरे में मौजूद 2 घरेलू मुलाजिम अचानक नीचे देखने लगे। जैनब ने सांस रोकी। अहमद ने बेचैनी से पेशानी सुकड़ाई, लेकिन फिर भी माँ को नहीं रोका। आलिया ने आहिस्ता से गले में पहने हार को छुआ। ये वही हार था जिसे अहमद ने शादी की महफिल में उसके गले में डाला था। उस दिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। शादी की रसूमात के बाद उसने कान में सरगोशी की थी, अब चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आलिया ने इस हार की जंजीर खोली। स्याह मोतियों का हार उसकी हथेली में आ गिरा। वो उसे फातिमा को देने की बजाय अहमद के सामने गई। ये आपकी माँ की चीज़ नहीं है, ये उस अहद की इलामत है जो आपने किया था। इसे आप ही देखें। अहमद ने हाथ नहीं बढ़ाया। आलिया ने वो हार तलाक के कागजात के ऊपर रख दिया। आज के बाद इसे किसी और औरत के गले में डालने से पहले याद रखना, जेवरात दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं, अहद नहीं। जैनब का चेहरा उतर गया। फातिमा गुस्से से उठी। ईद के दिन अब मनहूस बातें बोल रही हो? आलिया ने उसकी तरफ देखा। मनहूस अल्फाज में नहीं होता माँ, तमाम मनहूसी उस वक्त शुरू होती है जब इस घर में एतमाद से ज़्यादा दिखावे की इबादत होने लगे। फातिमा कुछ कहती इससे पहले अहमद आके बढ़ा। अब बस करो, जाओ यहाँ से। आलिया ने सूटकेस का हैंडल पकड़ा और दरवाज़ा खोला। बाहर रात अचानक ठंडी लगी। हवा में पटाखों का धुआं था। बालकोनी पर चराग जलते थे। सामने वाले घर में एक खानदान मिलकर तस्वीरें खिंचवा रहा था। बच्चों के हाथों में फूलों की झाड़ियाँ थीं और बूढ़े दरवाजे पर खड़े उन्हें दवाएं दे रहे थे। आलिया कुछ लम्हे सीढ़ियों पर खड़ी रही। 7 सालों में पहली बार वो ईद की रात इस घर से अकेली निकल रही थी। उसे रोना चाहिए था, शायद चीखना चाहिए था, शायद लौटकर अहमद से पूछना चाहिए था कि जिन सालों में उसने उसके लिए अपनी अवामी ज़िंदगी कुर्बान की, क्या वो वाकई इतने सस्ते थे? लेकिन उसके अंदर आंसू नहीं थे।
सिर्फ एक ठंडी सख्त वजाहत थी। सोसाइटी के बाहर उसकी बुलाई गई गाड़ी पहले से खड़ी थी। ड्राइवर ने सामान डिग्गी में रखा। आलिया पीछे बैठी और शीशे से घर की तरफ देखा। मरकजी दरवाजे पर जैनब दिखाई थी। वो फातिमा को दी हुई चूड़ियां अपनी कलाई पर पहनकर देख रही थी। अहमद उसके पास खड़ा था। दोनों ने बाहर जाती गाड़ी की तरफ सिर्फ एक बार देखा, फिर अंदर चले गए। गाड़ी चल पड़ी। गुलबर्ग की चमकती सड़कों से निकलकर वो शहर के मरकज की तरफ बढ़ी। हर चौराहे पर रोशनी थी, लेकिन आलिया को आज शहर किसी अजनबी जगह की तरह लग रहा था। मोबाइल उसकी गोद में पड़ा था। बार बार रिश्तेदारों की ईद के मुबारकबाद आ रही थी। तकरीबन 20 मिनट बाद अहमद का पैगाम आया। दरवाजे का डिजिटल कोड बदलवा दिया है। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मुलाजिम के ज़रिए मंगवा लेना। बराह रास्त घर आने की कोशिश मत करना। आज के बाद हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं। 7 करोड़ 50 लाख मुआहदा मुकम्मल होने पर मिल जाएंगे। आलिया ने पैगाम दोबारा पढ़ा। फिर उसने सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा, ठीक है। पैगाम भेजकर उसने फ़ोन बंद नहीं किया। उसने दूसरा महफूज फ़ोन निकाला जो महीनों से उसके बैग में खुफिया हिस्से में रखा था। उसने एक नंबर मिलाया। 2 घंटियों एक मर्द की गहरी आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ईद मुबारक। आलिया ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी हदायत का इंतज़ार कर रहा था। आलिया ने कार की खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे छोटे दुकानदार अब भी मिट्टी के दिए बेच रहे थे। कुछ फासले पर एक बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़े फूलों की झाड़ी जला रही थी। उसने बासत से पूछा, अहमद, टेक्नोलॉजी के अगले सरमायाकार दौर की क्या सूरत हाल है? बासत कुछ लम्हे खामोश रहा। आखिरी मंजूरी सतह पर है। मुजवजा रकम 135 करोड़ है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में कल इब्तदाई मुलाकात और परसों कराची में दस्तखत तय हैं। आपकी इजाज़त के बगैर रकम जारी नहीं होगी। आलिया ने आंखें बंद कर ली। 3 साल पहले यही फंड कंपनी को डुबोने से बचा चुका था। उस वक़्त सरमायाकारी एक आज़ाद ट्रस्ट के ज़रिए की गई थी, ताकि अहमद को कभी पता न चले कि आखिरी मंजूरी उसकी बीवी ने दी थी। आलिया ने कहा, पूरा अमल रोक दीजिए। दूसरी तरफ हल्की सांस सुनाई थी। फौरन, क्या कोई ख़ास वजह दर्ज करूं? आलिया ने कहा, अंदरूनी खतरे का जायजा किया, हमें रस्मी फॉरेंसिक ऑडिट भी शुरू करना है। आलिया ने अपनी गोद में रखी भूरे चमड़े की फाइल पर हाथ रखा। उसमें पिछले 6 महीनों के कुछ बैंक रिकॉर्ड, मशकूक अदायगियाँ और जैनब से जुड़ी एक मशावराती कंपनी की कापी थी। वो सब कुछ पहले ही देख चुकी थी, बस आज तक उसने कोई हुक्म नहीं दिया था। उसने कहा, आज रात से ऑडिट शुरू कीजिए। कंपनी के पिछले 12 महीनों के तमाम मुआहदे, मशावराती फीस, इश्तिहारी अखराजात और मुतल्लिका फ़रीक़ैन को होने वाली अदायगियाँ जाँचें, ख़ासतौर पर जैनब और उसके ख़ानदान से जुड़ी तंजीमों को। बासत की आवाज़ मज़ीद संजीदा हो गई। समझ गया। और 20% बयाना वोटिंग का हक। आलिया ने कुछ लम्हे जवाब नहीं दिया। अहमद के अल्फाज उसके अंदर गूंजे, तुम वही हो। तुम्हारी दुनिया बावर्ची खाने और घरेलू मुलाजमों तक महदूद है। उसने कहा, उस नुमाइंदगी के हक को जो अहमद को दिया गया था फौरी तौर पर वापस लेने का अमल शुरू कीजिए। ऐसा होते ही उन्हें अतला मिल जाएगी कि असली कंट्रोल करने वाला कोई और है। नाम फिलहाल खुफिया रखिए, लेकिन ज़्यादा अरसा मुमकिन नहीं होगा। आलिया ने कहा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए। कार डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के करीब एक महफूज कंपाउंड में दाखिल हो चुकी थी। उस ऊंची इमारत की खिड़कियों में चिराग चल रहे थे। फासद ने सब्र से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आज क्या हुआ? आलिया ने अपने खाली गले को छुआ, जहाँ कुछ देर पहले हार था। आज मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। फ़ोन की दूसरी तरफ लंबी खामोशी छा गई। फिर बासत ने बहुत परहेजगार लहजे में कहा, मुझे अफसोस है। आलिया ने कहा, अफसोस मुझे भी है, लेकिन फैसला वाज़ेह है। बासत ने पूछा, क्या ये कार्रवाई ज़ाती समझी जाएगी? आलिया ने कहा, नहीं। अगर कंपनी साफ है तो ऑडिट उसे बचा लेगा। अगर कंपनी अंदर से खोखली है तो मेरा दिल उसे नहीं बचाएगा। और अहमद, उसने सामने खुलते अपार्टमेंट के दरवाजे को देखा। आज से वो सिर्फ इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिसमें मेरे ट्रस्ट का पैसा लगा है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। उसने फ़ोन रख दिया। लिफ्ट उसे 47वीं मंजिल तक ले गई। दरवाज़ा खुलते ही खुद का रोशनी जल गई। ये अपार्टमेंट बरसों पहले उसकी वालिदा के ट्रस्ट ने खरीदा था। अहमद को उसके बारे में कभी नहीं बताया गया था। उसने उसे शोहर से छुपाने के लिए नहीं, बल्कि वालिदा की आखिरी नसीहत की वजह से महफूज रखा था। वालिदा ने वफात से पहले कहा था कि मोहब्बत में अपना घर बसा लेना आलिया, लेकिन अपने पैरों के नीचे की ज़मीन किसी और के नाम मत कर देना। तब उसे यह एहतियात गैर ज़रूरी लगी थी। आज इसी दरवाजे के अंदर कदम रखते हुए उसे पहली बार लगा कि वालिदा ने बरसों पहले उस रात की आहट सुन ली थी। आलिया ने सूटकेस एक तरफ रखा, खिड़की के पास जाकर शहर की रोशनियां देखीं और अपने खाली हाथ आगे बढ़ाए। चूड़ियां नहीं थीं,
हार नहीं था। शोहर का घर पीछे छूट चुका था, लेकिन पहली बार उसके हाथ पूरी तरह उसके अपने थे। उसी वक्त दूसरे फ़ोन पर मुसलसल कॉल्स आना शुरू हो गईं। पहली अहमद की थी, दूसरी तीसरी फातिमा की, फिर ज़ैनब की। आलिया ने कोई कॉल नहीं उठाई। चंद लम्हों बाद बासत का पैगाम आया, सरमायाकार रोक दिया गया है। बैंक को रिस्क जायजे की अतला मिल चुकी है। इब्तदाई जांच में कई गैर मामूली अदायगियाँ मिली हैं। जनाब अहमद ने फौरी वजाहत तलब की है। आलिया ने पैगाम पढ़ा और फ़ोन मेज़ पर रख दिया। बाहर आसमान में एक बड़ा सुनहरी पटाखा फूटा। उसकी रोशनी कुछ लम्हे पूरे कमरे में फैली और फिर अंधेरा लौट आया। घर से निकलते वक्त अहमद को यकीन था कि उसने एक बोझ उतार दिया है। उसे अभी मालूम नहीं था कि जिस औरत को उसने अपनी ज़िंदगी से बाहर, उसके एक लफ्ज़ ठीक है के साथ ही उसके पैरों के नीचे खड़ी पूरी माली ज़मीन खिसकने लगी है। अहमद की पहली कॉल रात 11:47 पर आई। आलिया ने फ़ोन की स्क्रीन को चमकते देखा, लेकिन उसे नहीं उठाया। चंद सेकंड बाद कॉल कट गई। फ़ौरन दूसरी कॉल आई, फिर तीसरी। इसके बाद पैगामात आने लगे। तुमने बासत से बात की है? सरमायाकारी अचानक क्यों रोकी गई? आलिया फ़ोन उठाओ, यह मजाक नहीं है। जिस शख्स ने 1 घंटा पहले उसे हुक्म दिया था कि अब इसके घर आने की कोशिश न करे, वही अब मुसलसल उसे बात करने के लिए बेचैन था। आलिया ने फ़ोन उल्टा रख दिया। वो बावर्ची खाने में गई, अपने लिए पानी गर्म किया और उसमें अदरक डाली। बरसों से जब अहमद को ज़ुकाम होता तो वो उसके लिए इसी तरह अदरक की चाय बनाती थी। पहले वो खुद कप लेकर बालकोनी में उसके पास बैठ जाती, फिर आहिस्ता आहिस्ता अहमद ने कहना शुरू कर दिया था कि उसे अकेले छोड़ दिया करें। आखिर में हालत ये हो गई कि वो चाय मेज़ पर रख देती और अहमद उसे छुए बगैर सो जाता। आज पहली बार आलिया ने वही चाय सिर्फ अपने लिए बनाई। कप हाथ में लेकर वो मुताले के कमरे में गई। दीवार की अलमारी में मालियात, सरमायाकारी और कारपोरेट हुक्मरानी की किताबें तरतीब से रखी थीं। इन किताबों को देखकर किसी अजनबी को फ़ौरन पता चल जाता कि इस घर में रहने वाली औरत सिर्फ नमाज और बावर्ची खाने तक महदूद नहीं थी। लेकिन अहमद इस अपार्टमेंट में कभी आया ही नहीं था। आलिया ने अपना लैपटॉप खोला। 3 मुख्तलिफ हफाजती तहें अबूर करने के बाद स्क्रीन पर रहमान फैमिली ट्रस्ट का अंदरूनी पोर्टल खुला। उसके नीचे मावन सरमायाकारी अदारा फ्रेश ग्रोथ पार्टनर्स का डैशबोर्ड था, जो एग्जैक्ट टेक्नोलॉजीज़ को इन कंपनियों की फहरिस्त में ऊपर दिखा रहा था, जिनकी सरमायाकारी जायज़ा फौरी तौर पर रोक दिया गया था। सुर्ख रंग में एक इंतबाह चमक रहा था, आला खतरा, गैर मामूली मुतलका फ़रीक अदायगी। आलिया ने फ़ाइल खोली। इब्तदाई डेटा सिर्फ 4 घंटे में जमा किया गया था, फिर भी इसमें इतने इशारे थे कि कोई भी होशियार सरमायाकार अगली अदायगी रोक देता। पिछले 9 महीनों में 5 मुख्तलिफ मशावराती कंपनियों को तकरीबन 14 करोड़ दिए गए थे। इनमें से 3 के दफ्तर एक ही पते पर दर्ज थे। चौथे अदारे में सरमायाकार के तौर पर ज़ैनब की मरहूम बाई का नाम था। पाँचवीं कंपनी सिर्फ 6 महीने पहले बनी थी और उसे ब्रांड की साख के इंतजामात के नाम पर 3 करोड़ से ज़ायद की अदायगियाँ की गई थीं। आलिया हर सतर गौर से पढ़ती गई। जितना नीचे जाती एक नई परत खुलती। एक मंसूबे का खर्च 3 बार दिखाया गया था। को सॉफ्टवेयर लाइसेंस फरोख्त करने का किया, उनमें से अभी आजमाइशी माहदे से आगे दस्तखत ही नहीं कर सके थे। फिर भी उन्हें सालाना आमदनी में शामिल करके कंपनी का मालियत बढ़ा दिया गया था। ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये मनसूबा बंद धोखा था। अहमद सरमायाकारों के सामने कंपनी को हकीकत से कहीं ज़्यादा कामयाब दिखाने की तैयारी कर रहा था। आर्या ने रिपोर्ट के साथ मुंसलिक एक कर्ज का बयान खोला। इसमें कराची के एक महंगे जेवरात के स्टोर से अदायगी थी। कंपनी के कार्ड से खरीदी गई शय को गैर मुल्की वफद के लिए सकाफती तोहफा लिखा गया था। इसी तारीख को एक अवामी तस्वीर में ज़ैनब ने वही पखराज का हाथ था। आलिया ने स्क्रीन नहीं की। उसने इस तस्वीर और खर्च के बयान को एक साथ महफूज कर लिया। उसके अंदर कोई धमाका नहीं हुआ। वो चीखी नहीं, गुस्से में मेज़ पर हाथ नहीं मारा। उसे सिर्फ ये एहसास हुआ कि जिस शादी की मौत आज ऐलान हुई, उसका जिस्म अभी तक सड़कों पर बिखरा हुआ था। दरवाजे की घंटी बजी। रात 12 बज रहे थे। सिक्योरिटी स्क्रीन पर बासत नजर आए। तकरीबन 50 साल की उम्र, चांदी मिला हुआ दाढ़ी और हाथ में चमड़े का दस्तावेजी बैग। वह बरसों से रहमान ट्रस्ट के माली मामला संभाल रहे थे। आलिया के वालिदा मरहुमा मीना रहमान उन्हें ख़ानदान के चंद काबिल एतमाद अफराद में शुमार करती थीं। आलिया ने दरवाज़ा खोला। इतनी रात को आने की ज़रूरत नहीं थी। बासुदा ने अंदर आते हुए कहा, फ़ोन पर जितना बता सकता था बता दिया। आगे की बात आमने सामने करना मुनासिब लगा। उन्होंने बैठक में बैठकर बैग से कागजात निकाले। ये असल सरमायाकारी का मुआहिदा है।
3 साल पहले अहमद टेक्नोलॉजीज़ को पहली बार सरमाया दी गई थी। आपके ट्रस्ट ने एक ख़ास मकसद वाले अदारे के ज़रिए 20% बयाना वोटिंग के हकूक़ महफूज रखे थे। अहमद को ऑपरेशन की सहूलत देने के लिए नुमाइंदगी का हक दिया गया था, लेकिन असल कंट्रोल कभी उनके पास नहीं गया। आलिया ने दस्तावेज देखा, उसके अपने दस्तखत नीचे मौजूद थे। उसे वो राज साफ याद था। अहमद के दफ्तर का किराया 3 महीने से बकाया था। मुलाजिम अफवाहें रुक गई थीं। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नौकरी छोड़ने का सोच रहा था। अहमद ने किसी के सामने हार नहीं मानी, लेकिन घर लौटकर बाथरूम में बंद होकर रोया था। उसने दरवाजे के बाहर खड़ी आलिया से कहा था, मैं नाकाम हो गया। आलिया ने उस रात बासत को फ़ोन किया था। रहमान ट्रस्ट का असूल था कि खानदानी ताल्लुक वाले कारोबार में बगैर आज़ाद जायजे के सरमायाकारी नहीं की जाएगी। इसलिए उसने एक बैरूनी कमेटी बनवाई, कंपनी का मॉडल जांचा और पाया कि टेक्नोलॉजीज़ में हकीकी सलाहियत है। सरमायाकारी सिर्फ शोहर को बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक काबिल कंपनी को मौका देने के लिए की गई थी। फिर भी आखिरी मंजूरी उसने दी थी। बासत ने उस वक्त पूछा था कि क्या तुम यकीनी हो? आलिया ने जवाब दिया था, उसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि पैसा मेरी तरफ से आया। बासत ने पूछा क्यों? आलिया ने कहा क्योंकि अभी उसे सरमाए की ज़रूरत है, एहसान की नहीं। आज वही जुमला उसे हमाकत लगा। बासत ने अपनी दस्तावेज सामने रखी। अहमद को बाज़ाब्ता अतला कल सुबह बेच दी जाएगी। उनकी नुमाइंदगी का हक मुअत्तल किया जा रहा है। अब तक हम इब्तदाई जांच मुकम्मल कर लेंगे। बोर्ड के बाकी अरकान और 2 आज़ाद सरमायाकार परेशान हैं। एक ने शाम को ही मुझसे रब्ता किया। उन्हें पिछले कुछ महीने से मालियाती रिपोर्ट पर शक था, लेकिन अहमद हर सवाल को तेज़ रफ्तार तोसी का हिस्सा बताकर टालते रहे। चीफ फाइनेंस ऑफिसर बासत का चेहरा संजीदा हो गया। 7 महीने पहले तब्दील किया गया। पुराने अफसर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। उन पर नाकस कारकर्दगी का इल्ज़ाम लगाकर हटाया गया। उनकी जगह ज़ैनब की सिफारिश पर नया शख्स आया। आलिया ने कुर्सी पर पीछे झुककर कहा, पुराने अफसर से रब्ता किया है, वो सुबह बयान देने को तैयार है। बासत कुछ लम्हे उसे देखते रहे। क्या आप ठीक हैं? आलिया ने पुरसुकून जवाब देना चाहा, लेकिन आवाज़ थोड़ी धीमी थी। मुझे खुद नहीं मालूम। बासत ने कहा, अगर चाहें तो ये अमल कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं। आलिया ने कहा, नहीं, मैं सरमायाकारी रोकने की बात नहीं कर रही। जान चलती रहेगी, लेकिन आपको ज़ाती तौर पर हर मरहले पर मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं है। आलिया ने खिड़की के बाहर देखा। बरसों तक मैं मौजूद थी, लेकिन दिखाई नहीं देती थी। अब वक़्त आ गया है कि मैं मौजूद भी रहूं और दिखाई भी दूं। बासत ने सर झुका लिया। कल शाम डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में सरमायाकारों का खाना मनसूख कर दिया गया है। उसकी जगह सुबह 10 बजे हंगामी जायजा इजलास होगा। अहमद को अभी तक ये नहीं बताया गया कि आप उसमें शामिल होंगी। आलिया ने कहा, ठीक है, ज़ैनब भी आएगी। उसकी आंखों में हल्की सख्ती आई। आने दीजिए। बासत के जाने के बाद आलिया ने वालिदा की घड़ी उतार कर मेज़ पर रखी। पीछे लिखे छोटे हरूफ पर उंगली फेरी। वक़्त सच को छुपाता नहीं, सिर्फ सामने आने का इंतज़ार करता है। उसकी वालिदा खुद लाहौर की एक कामयाब सरमायाकारी मशीर रही थी। शौहर की वफ़ात के बाद रिश्तेदारों ने उन्हें कारोबार बेचकर ख़ानदान के किसी मर्द को कंट्रोल देने का मशवरा दिया था। मीना ने इनकार कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ कारोबार चलाया, बल्कि बरसों बाद उसे ट्रस्ट में तब्दील कर दिया, ताकि दौलत सिर्फ एक नस्ल के ऐश पर खर्च ना हो, कि तालीम, ख़वातीन के कारोबार और तवील मुद्दती सरमायाकारी में लगाई जा सके। आलिया ने मुआशियात और मालियात में तालीम हासिल की थी। वह कराची में सरमायाकारी के तजर्बे कार के तौर पर काम कर चुकी थी। अहमद से शादी के बाद कुछ साल तक उसने नौकरी जारी रखी। फिर फातिमा को दिल की बीमारी हुई। घर और हस्पताल की जिम्मेदारी बढ़ी। उस वक़्त अहमद का स्टार्टअप शुरू हुआ। बस चंद महीने की बात है। अहमद ने कहा था, कंपनी संभल जाएगी, फिर तुम वापस काम शुरू कर लेना। वो चंद महीने 7 सालों में बदल गए। पहले आलिया ने फातिमा की देखभाल के लिए छुट्टी ली, फिर अहमद की मीटिंग्स की पेशकशों को बेहतर बनाने लगी, ग्राहकों के लिए मालियाती मॉडल बनाए, मुलाजमीन की बीमा और तनख्वाहों के ढांचे की मशावरत दी, लेकिन वो सब गैर रस्मी था, कहीं उसका नाम नहीं था। जब कंपनी चल पड़ी तो अहमद ने कहा, अब तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है, हमारे पास सब कुछ है। आहिस्ता आहिस्ता उसने आलिया के इल्म की मदद नहीं, बल्कि एक फितरी फ़र्ज समझना शुरू कर दिया। सुबह तकरीबन 2 बजे फातिमा की कॉल आई। आलिया ने इस बार उठा ली। तुमने क्या किया है? दूसरी तरफ से आवाज़ गूंजी, इस मौसम में ड्रामा मत करो। अभी अहमद को सरमायाकारों का फ़ोन आया है। कल की मीटिंग मनसूख कर दी गई है। बैंक ने भी कुछ तफसीलात मांगी हैं। घर से निकलते ही तुमने किसी से शिकायत कर दी। आलिया ने कहा, आपको लगता है मेरी शिकायत से 100 करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी रुक सकती है? फातिमा कुछ लम्हे खामोश रही। तुम्हारे मेके में पुराने दोस्त हैं, ज़रूर किसी ने रोक दिया होगा।
आलिया ने कहा, आप ही तो कहती थीं कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। फातिमा ने कहा, वो घर की बात थी। बाहर जाकर खानदान की बदनामी करने का हक नहीं मिला। आलिया के होंठों पर कड़वी मुस्कुराहट आई। जिस खानदान से मुझे आज निकाल दिया गया, उसकी साख बचाना अब भी मेरी जिम्मेदारी है। फातिमा ने कहा, तलाक हुई नहीं। आलिया ने जवाब दिया, लेकिन चूड़ियाँ और हार तो आपने वापस ले लिया। फातिमा की आवाज़ थोड़ी नरम हुई। मैं गुस्से में थी। आलिया ने कहा, आप बहुत खुश लग रही थी। फातिमा ने कहा, देखो, बहस का वक्त नहीं। अहमद बहुत दबाव में है। तुमने जहाँ भी बात की है वापस लो। सुबह नमाज के बाद घर आ जाना, बैठकर बात करेंगे। आलिया ने पूछा, किस मौजू पर? फातिमा ने कहा, तलाक के मौजू पर भी। अगर तुम्हें 7 करोड़ 50 लाख कम लगते हैं तो रकम बढ़ सकती है। आलिया की आंखें ठंडी हो गईं। आपको लगता है मसला रकम का है? फातिमा ने कहा, फिर और क्या है? औरत को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अहमद जितना दे रहा है उतना कोई दूसरा आदमी नहीं देगा। आलिया ने कहा, मुझे दूसरा आदमी नहीं चाहिए। माँ, मुझे अपना एहतराम चाहिए था। फातिमा ने कहा, इज्जत से घर नहीं चलता। आलिया ने जवाब दिया, तो जिल्लत से भी नहीं। उसने कॉल काट दी। चंद मिनट बाद ज़ैनब का पैगाम आया। आलिया बाजी, उम्मीद है आप महफूज पहुँच गईं। अहमद बहुत दबाव में है। आप बराह करम कारोबार में ज़ाती जज्बात न लाएं। आलिया ने पैगाम पढ़ा और जवाब नहीं दिया। फिर एक तस्वीर आई। ज़ैनब ने फातिमा की दी हुई ख़ानदानी चूड़ियाँ अपनी कलाई पर पहन रखी थीं। नीचे लिखा था, आंटी ने इसरार करके पहनाई। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। आलिया ने तस्वीर को रिपोर्ट की फाइल में नहीं रखा। उसका कंपनी के मालियाती जायजे से कोई ताल्लुक नहीं था। उसने सिर्फ स्क्रीन शॉट लिया और ज़ाती दस्तावेज़ात के एक फ़ोल्डर में महफूज कर लिया। कुछ ज़िल्लतें कानूनी सबूत नहीं होती, लेकिन इंसान को सही फैसले पर कायम रखने के लिए याद दहानी का काम करती हैं। अगली सुबह लाहौर पर ईद के धुएं की धुंध फैली हुई थी। ज़्यादातर घरों में लोग देर तक सो रहे थे, लेकिन फ्रेश ग्रोथ पार्टनर्स के दफ्तर में सुबह 7 बजे से मुलाकातें शुरू हो चुकी थी। आलिया हल्के बादामी रंग का दुपट्टा पहनकर पहुंची। उसने कोई भारी जेवर नहीं पहना। गले में सिर्फ वालदा की दी हुई पतली सोने की जंजीर थी। बालों को सादा जोड़ा में बांध रखा था। कॉन्फ्रेंस रूम में बासत और 2 वकील, एक फ्रांसक अकाउंटेंट और पुराने माली अफसर राशिद मौजूद थे। राशिद ने आलिया को देखते ही पहचान लिया। मैडम, आप कभी कभी अहमद के घर की तकरीबात में आती थीं। उस वक़्त अहमद उनका तारुफ सिर्फ मेरी बीवी कहकर करवाता था। बासत ने कहा, मोहतरमा, आलिया रहमान इस सरमायाकार ग्रुप की सरबराह और अहमद टेक्नोलॉजीज़ में असल बयाना वोटिंग के हक की हामिल हैं। राशिद कुछ लम्हे बोल नहीं पाया। मुझे उसकी इत्तला नहीं थी। आलिया ने कहा, कंपनी में बहुत कम लोगों को थी। आप जो जानते हैं बगैर किसी झिझक के बताएं। राशिद ने पानी पिया और अपनी फाइल खोली। तकरीबन 1 साल पहले अहमद ने महसूल को कबल अज़ वक़्त ज़ाहिर करने का सिलसिला शुरू किया। जिन ग्राहकों ने सिर्फ इरादे का खत दिया था, उन्हें मुकम्मल मुआहदा दिखाया गया। मैंने एहतजाज किया तो ज़ैनब ने कहा था कि सरमायाकारी का दौर मुकम्मल होने तक इरादो शुमार पर कशिश दिखनी चाहिए। आलिया ने पूछा, क्या तहरीरी हदायत है? राशिद ने कहा, कुछ ईमेल्स हैं, ज़्यादातर अहकाम ज़ुबानी थे, लेकिन मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकल महफूज रखी। उसने एक पेन ड्राइव आगे बढ़ाई। मुझे हटाने से पहले उन्होंने एक अदायगी मंजूर करने को कहा था। कुछ करोड़ एक मीडिया मशावराती कंपनी को। कोई हकीकी खिदमत नहीं दी गई थी। मैंने दस्तखत करने से इनकार किया। अगले हफ्ते मुझ पर खुफिया मालूमात लीक करने का इल्ज़ाम लगाकर निकाल दिया गया। आलिया ने पूछा, क्या अहमद को मालूम था कि कंपनी ज़ैनब के रिश्तेदार की है? राशिद ने कहा, उन्होंने खुद कहा था कि नाम देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं। अपने लोगों के साथ काम करने में आसानी होती है। यही अल्फाज थे। अगले 2 घंटे में एक एक करके दस्तावेजात सामने आती गईं। ज़ैनब से जुड़ी कंपनी को अदायगियाँ, कंपनी के पैसों से खरीदी गई लग्जरी गाड़ी, कराची के डिफेंस फेज़ में एक फ्लैट के लिए पेश की रकम, मुजवज़ा सरमायाकारी के बाद गैर मुल्की अकाउंट में रकम बेचने का मंसूबा, और सबसे संगीन बात, छोटे मुलाजमीन के मुस्तकबिल के फंड में 2 महीने से रोकी गई रकम, जबकि उस अरसे में आला अफसर के नाम पर बड़े बोनस दर्ज किए गए थे। आलिया की उंगलियां मेज़ पर जम गईं। फ्रांसिक माहर ने कहा, नकदी बचाने के लिए अदायगियां टाली गईं, लेकिन माली बयानात में उसे मुअत्तल नहीं दिखाया गया। आलिया ने अहमद का वो पैगाम याद किया जिसमें उसने कहा था कि 7 करोड़ 50 लाख उसके लिए बहुत हैं। वही शख्स मुलाजमीन की छोटी छोटी बचतें रोककर ज़ैनब के लिए करोड़ों खर्च कर रहा था। उसने कहा, इसका असर कितने लोगों पर है? बासत ने कहा, तकरीबन 240 मुलाजमीन। उनकी अदायगियां पहले कर दी जाएं, चाहे आखिरी रकम ट्रस्ट को देनी पड़े। बासत ने उसकी तरफ देखा।
ایسا کرنے سے باہر یہ پیغام جا سکتا ہے کہ سرمایہ کار کمپنی کو اپنے کنٹرول میں لے رہا ہے۔ عالیہ نے کہا، ہم کنٹرول کے لیے نہیں، ذمہ داری کے لیے یہاں ہیں۔ ملازمین کو احمد کی اگلی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اجلاس ختم ہونے سے پہلے باسط نے بتایا کہ احمد مسلسل رابطہ کر رہا ہے۔ اس نے آپ کو 5 بار فون کیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کسی حریف نے غلط معلومات دی ہیں۔ اسے بتایا کہ 10 بجے اجلاس میں تمام سوالات رکھے جائیں گے۔ کیا اسے آپ کی موجودگی کی اطلاع دے دوں؟ عالیہ نے کہا، نہیں۔ ادھر احمد کے گھر میں صبح سے تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ احمد پوری رات نہیں سویا تھا۔ اس نے کئی بینک افسران، سرمایہ کاروں اور پرانے رابطوں کو فون کیا، لیکن کوئی واضح جواب نہیں دے رہا تھا۔ جس باسط کو وہ مہینوں سے ایک عام سرمایہ کار کے نمائندے کے طور پر ہدایت دیتا رہا تھا، اس نے اب صرف اتنا کہا تھا کہ آخری فیصلہ جائزہ کمیٹی کرے گی۔ احمد نے زینب سے کہا، یہ عالیہ کا کام ہے۔ زینب نے کہا، لیکن وہ اتنی بڑی کارروائی کیسے روک سکتی ہے؟ اس نے یقیناً اپنے میکے کے کسی سے بات کی ہے۔ احمد نے کہا، اس کے میکے میں کون؟ اس کی والدہ کو مرے برسوں ہو گئے، وہ خود تو کہیں کام نہیں کرتی۔ فاطمہ نے بیچ میں کہا، اسے واپس بلا لو، تھوڑی رقم دے دو۔ عورتیں پیسے اور جذبات سے مان جاتی ہیں۔ زینب کا چہرہ بگڑ گیا۔ اسے واپس کیوں بلانا؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اس کے جانے سے گھر میں سکون ہوگا۔ فاطمہ نے پہلی بار زینب کو سخت نگاہوں سے دیکھا۔ میں اسے بہو بنا کر نہیں بلا رہی، مسئلہ حل کرنے کے لیے بلا رہی ہوں۔ احمد خاموش رہا۔ زینب نے اس کے پاس جا کر کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ اجلاس میں جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کمپنی کے اعداد و شمار مضبوط ہیں۔ احمد نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ کیا تمام مشاورتی ادائیگیاں درست ہیں؟ زینب رک گئی۔ آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ احمد نے کہا، کیونکہ سرمایہ کاروں نے خاص طور پر متعلقہ فریق کے اخراجات کا ذکر کیا۔ زینب نے کہا، کچھ آپ کی منظوری سے ہوا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی احمد نے اس کی طرف دیکھا۔ میری منظوری سے کیا مطلب؟ کمپنی کی منظوری سے۔ دونوں کے درمیان پہلی بار عدم اعتماد کی پتلی لکیر دکھائی تھی۔ صبح 9:30 بجے احمد اور زینب ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے ایک 5 ستارہ ہوٹل پہنچے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ معمول کی سرمایہ کاری کی پیشکش ہوگی، لیکن داخلی دروازے پر کوئی استقبالیہ بورڈ نہیں تھا۔ نہ پول، نہ میڈیا، نہ جشن کا ماحول۔ انہیں سیدھے اوپر نجی کانفرنس فلور پر لے جایا گیا۔ زینب نے پوچھا، اتنی سیکیورٹی کیوں ہے؟ ریسیپشنسٹ نے کہا، ملاقات خفیہ ہے۔ اس وقت عالیہ کی کار ہوٹل کے پچھلے دروازے سے رکی۔ باسط خود اسے لینے نیچے آئے۔ انہوں نے کہا، بورڈ کے تمام اراکین پہنچ چکے ہیں، بینک کے تمام نمائندے بھی ہیں۔ احمد بار انتظار کر رہے ہیں۔ عالیہ نے ایک لمحہ آنکھیں بند کیں۔ وہ ڈر نہیں رہی تھی، لیکن جسم پرانے تعلقات کو عقل سے زیادہ یاد رکھتا ہے۔ اتنی برسوں تک وہ احمد کی کامیابی کے ہر اہم دن ان کی تیاری کرتی، اسے ناشتہ کھلاتی اور دروازے تک رخصت کرتی تھی۔ آج وہ اسی کا جائزہ لینے جا رہی تھی۔ باسط نے چلتے ہوئے کہا، کل رات جب آپ نکلیں تو کچھ دیر بعد کمپنی کے سرور سے کچھ فائلیں ہٹانے کی کوشش ہوئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک بیک اپ محفوظ کر لیا ہے۔ عالیہ نے پوچھا، کس کے لاگ ان سے؟ باسط نے کہا، زینب کے انتظامی اکاؤنٹ سے۔ عالیہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا۔ ہال کے دوسرے سرے پر احمد کھڑا تھا۔ اس نے عالیہ کو دیکھتے ہی پہلے راحت، پھر حیرت اور آخر میں غصے بھری نگاہیں دکھائیں۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عالیہ نے کہا، اجلاس میں جا رہی ہوں۔ احمد نے کہا، یہ سرمایہ کاروں کی میٹنگ ہے۔ عالیہ نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ باسط نے کہا، میں نے بلایا۔ احمد کا چہرہ بگڑ گیا۔ باسط نے کہا، جناب، یہی بات اجلاس میں واضح ہو جائے گی۔ زینب بھی پاس آ گئی۔ اس کی نظر عالیہ کے دوپٹے، گھڑی اور باسط کے رویے پر گھوم گئی۔ عالیہ باجی، آپ نے واقعی سرمایہ کاروں سے شکایت کی ہے؟ یہ ٹھیک نہیں۔ احمد کے ساتھ آپ کا رشتہ ختم ہو رہا ہے، لیکن کمپنی میں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں۔ عالیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ملازمین کی فکر تمہیں کب سے ہونے لگی؟ زینب نے کہا، میں کمپنی کی سینئر آفیسر ہوں۔ عالیہ نے کہا، تو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ ان کا مستقبل کا فنڈز 2 مہینے سے جمع نہیں ہوا۔ زینب کا چہرہ لمحے بعد میں سفید پڑ گیا۔ احمد نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ زینب نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ عالیہ نے کہا، اندر چلیے، وہاں دستاویزات بھی ہیں اور جواب دینے کا وقت بھی۔ احمد نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ پہلے مجھے بتاؤ، یہ سب تمہیں کیسے پتا چلا؟ عالیہ کا لہجہ دھیما تھا۔ جس دن تم نے مجھے نااہل سمجھ کر گھر سے نکالا، اسی دن تمہیں یہ سوال پوچھنے کا حق ختم ہو گیا۔ باسط نے کانفرنس روم کا دروازہ کھولا۔ اندر لمبی میز کے ارد گرد سرمایہ کاروں کی کمیٹی، بینک کے نمائندے، آزاد ڈائریکٹر، قانونی ماہرین اور آڈٹ ٹیم بیٹھی تھی۔ میز کے اوپر سرے پر ایک کرسی خالی تھی۔ احمد قدرتی طور پر اس طرف پڑھا۔
लेकिन बासत ने हाथ से इशारा करके उसे रोक दिया। जनाब अहमद, आपकी जगह सामने है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बासत खुद काली कुर्सी के पास गए, उसे थोड़ा पीछे खींचा और आलिया से कहा, मोहतरमा आलिया, बराह मेहरबानी सदारत करें। अहमद वहीं खड़ा हो गया। उसकी आंखें पहले बासत पर गईं, फिर खाली कुर्सी पर और आखिर में आलिया के चेहरे पर टिक गईं। क्या हो रहा है? आलिया ने बगैर जल्दी के मेज़ के ऊपरी सिरे तक गई। उसने अपनी फाइल सामने रखी और उस कुर्सी पर बैठ गई जिसे अहमद अपना हक समझकर आगे बढ़ा था। कमरे में मौजूद तमाम लोग उसके बैठने के बाद बैठे। सिर्फ अहमद और जैनब कुछ लम्हे खड़े रहे। आलिया ने सामने रखे दस्तावेज का पहला सफ़ा खोला। बैठ जाइए जनाब अहमद, उसने मुकम्मल कारोबारी लहजे में कहा। आज हमें आपके ज़ेर इंतज़ाम कंपनी के माली बयानात पर बात करनी है। अहमद के होंठ खिले लेकिन आवाज़ नहीं निकली। जिस औरत को उसने पिछली रात 7 करोड़ 50 लाख देकर अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया था, आज वही इस मेज़ के सिरे पर बैठी थी, जहां उसकी पूरी कंपनी का मुस्तकबिल तय होने वाला था। अहमद आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी पर बैठा, लेकिन उसकी निगाह आलिया के चेहरे से नहीं हटी। जैसे उसे उम्मीद हो कि अगले चंद लम्हों में कोई हंस कर कह देगा कि यह सिर्फ एक ड्रामा था। शायद किसी सरमायाकार ने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी बीवी को सामने बिठा दिया है। शायद आलिया ने किसी जानने वाले की मदद से थोड़ी देर के लिए ये एजाज़ हासिल कर लिया है। लेकिन कमरे में मौजूद लोगों का रवैया उस उम्मीद को हर लम्हा कमज़ोर कर रहा था। बासत आलिया के दाईं तरफ बैठे फ्रांसिक माहर ने उसके इशारे का इंतज़ार करते हुए लैपटॉप खोला। बैंक के दोनों नुमाइंदों ने अपनी दस्तावेजात उसकी तरफ सरका दी। आज़ाद डायरेक्टर भी अहमद की बजाय आलिया की तरफ देख रहे थे। ज़ैनब अहमद के पहलू में बैठी थी। उसकी उंगलियां मेज़ पर कस कर जुड़ी हुई थीं। पिछले रोज़ फातिमा की दी गई ख़ानदानी चूड़ियाँ उसने आज भी पहन रखी थीं, लेकिन अब वो उसकी कलाई पर फतह की अलामत कम और किसी जुर्म के सबूत ज़्यादा लग रही थी। अहमद ने गला साफ किया। इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी बीवी यहाँ किस हक से बैठी है। आलिया ने उसकी तरफ देखा। साबका बीवी, उसने पुरसुकून लहजे में कहा, कानूनी कार्रवाई अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन आपने कल ही कहा था कि हमारे दरमियान अब कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कारोबारी मीटिंग में ज़ाती अल्फाज इस्तेमाल न करें, बेहतर है। अहमद के चेहरे पर जिल्लत की सुर्खी दौड़ गई। बासत ने सामने रखा दस्तावेज उठाया। जनाब अहमद, 3 साल पहले फ्रेश ग्रोथ पार्टनर्स ने अहमद टेक्नोलॉजीज़ में पहली बड़ी सरमायाकारी की थी। सरमायाकार रहमान फैमिली ट्रस्ट के ज़ेर कंट्रोल अदारे के ज़रिए थे। इस मुआहदे के तहत ट्रस्ट ने 20% बयाना वोटिंग का हक और वेटो समेत बाज़ फैसलों पर रोक का हक महफूज रखा था। अहमद ने बेताबी से कहा, यह सब मैं जानता हूँ, यह हक आपके सरमायाकारी ग्रुप को है। वासत ने जवाब दिया, मैं सिर्फ मैनेजर हूँ। आखिरी फ़ायदा उठाने वाली और कंट्रोल करने वाली मोहतरमा आलिया रहमान है। कमरे की हवा भारी हो गई। अहमद की पलकें तक नहीं झपकीं। बासत ने दस्तावेज उसकी तरफ बढ़ाई। ये असल ट्रस्ट की साखत, मंजूरी और वोटिंग कंट्रोल का सबूत है। आपने ऑपरेशन के नुमाइंदे के तौर पर हकूक़ का इस्तेमाल किया, लेकिन वो कभी आपके ज़ाती हकूक़ नहीं थे। सब ने कागज़ उठा लिया। उसकी आंखें तेज़ी से सतूर पर दौड़ी। नीचे आलिया के दस्तखत देखकर उसकी उंगलियां रुक गईं। यह कब हुआ? आलिया ने जवाब दिया, जब आपकी कंपनी मुलाजमीन की तनख्वाह देने की हालत में नहीं थी। अहमद ने कहा, तुमने मुझसे छुपाया? आलिया ने कहा, मैंने आपको बचाया, झूठ बोलकर आपको यकीन दिलाया कि सरमायाकारी आपकी काबिलियत की बुनियाद पर आई है, जबकि सच ये था कि आपकी काबिलियत को मौका देने के लिए मैंने अपनी वालिदा के ट्रस्ट का पैसा खतरे में डाला। अहमद ने कागज़ मेज़ पर पटका। मुझे तुम्हारी मेहरबानी की ज़रूरत नहीं थी। आलिया की आंखों में पहली बार हल्की सी तकलीफ दिखी। उस रात बालकोनी में बैठकर आपने यही नहीं कहा था। तब आपने कहा था कि अगर एक हफ्ते में पैसा नहीं मिला तो कंपनी बंद हो जाएगी। आपने ये भी कहा था कि आप मुलाजमीन का सामना नहीं कर पा रहे। अहमद खामोश हो गया। उसे वो रात यकीनन याद थी। आलिया ने कहा, मैंने अंधा सरमायाकारी नहीं की। आज़ाद माहिरीन से कंपनी की टेक्नोलॉजी जांचवाई, कारोबार में सलाहियत थी, इसलिए पैसा दिया। मैंने आपका खुद एतमादी बचाने के लिए अपना नाम पीछे रखा। मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन वही खुद एतमादी गरूर बनकर मुझे ही जलील करेगा। ज़ैनब ने बीच में कहा, लेकिन इसका मौजूदा जायजे से क्या ताल्लुक है? सरमायाकार होने का मतलब ये नहीं कि आप ज़ाती गुस्से में कंपनी को रोक दें। आलिया ने उसकी तरफ देखा। ठीक कहा। इसलिए आज हम सिर्फ दस्तावेजात पर बात करेंगे। उसने फ्रांसिक माहिर को इशारा किया। सामने की बड़ी स्क्रीन पर पहला माली बयान खुला।
पिछले 12 महीनों के इश्तिहारी और मशावराती अखराजात की फहरिस्त थी। सुर्ख रंग से निशानात जर्द 5 कंपनियां अलग दिखाई दे रही थीं। फॉरेंसिक माहिर ने कहा, इन अदारों को कल 14 करोड़ 37 लाख दिए गए। दस्तयाब शवाहिद के मुताबिक उनकी फ्राहम करदा खदमात की कीमत अदायगी की गई रकम के 10% के बराबर भी नहीं है। उन अदारों के जायज़ा अखराजात और बेबुनियाद अदायगियों के लिए अहमद फ़ौरन बोला, तेज़ी से बढ़ती कंपनी में ब्रांड बनाने में अखराजात मामूल हैं। आलिया ने कहा, अगर कंपनी हकीकी खिदमत ले रही होती तो ठीक था, लेकिन इनमें से 3 अदारों का कोई अमला नहीं है। बासत ने दूसरी साइट खुलवाई, साबत मीडिया एडवाइजरी, जिसमें सरमायाकार पूजा शरीफ है। ज़ैनब का चेहरा बदल गया। आलिया ने पूछा, पूजा शरीफ कौन है? ज़ैनब ने होंठ चिपकाए। अहमद ने उसकी तरफ देखा, जवाब दो। ज़ैनब ने कहा, मेरी मरहूमा बहन। कमरे में धीमी सरगोशी हुई। ज़ैनब जल्दी बोली, लेकिन वो बरसों से अवामी ताल्लुकात के शोबे में काम करती है। सिर्फ रिश्तेदार होने से मुआहिदा गलत नहीं होता। फॉरेंसिक माहिर ने कहा, यह अदारा मुआहिदे से 3 हफ्ते पहले रजिस्टर्ड हुआ। दर्ज दफ्तर का पता एक मामूली फ्लैट का है। कंपनी के नाम पर कोई मुस्तकिल मुलाजमत का रिकॉर्ड या साबिक़ गाहक नहीं मिला। आलिया ने ज़ैनब के सामने मुआहिदे की कापी रखी। इस पर काम की मंजूरी देने वाले अफसर के दस्तखत आपके हैं? ज़ैनब ने कहा, मैंने अहमद से हदायत ली थी। अहमद ने फ़ौरन उसकी तरफ देखा। मैंने सिर्फ कहा था कि अमल जल्द मुकम्मल करो। ज़ैनब ने कहा, आपने कंपनी का नाम भी मंजूर किया था। अहमद ने कहा, तुमने मुझे नहीं बताया कि वो तुम्हारी बहन की है। ज़ैनब का लहजा बेसाख्ता बुलंद हो गया। आप हमारे घर इसके साथ खाना खा चुके हैं। कमरे में फिर खामोशी छा गई। अहमद के चेहरे पर गुस्सा उभरा, लेकिन वो समझ गया कि ज़्यादा बोलना नुकसानदा होगा। आलिया ने अगला दस्तावेज़ खोला। अब इस अदायगी पर आते हैं। कराची में एक जेवरात के बेचने वाले को 86 लाख खर्च के बयान में गैर मुल्की गाहकों के लिए तोहफा लिखा है। स्क्रीन पर ज़ैनब की एक तस्वीर दिखाई दी। उसने वही पखराज का हार पहन रखा था। ज़ैनब अचानक खड़ी हो गई। आपने मेरी ज़ाती तस्वीर जमा की? आलिया ने कहा, तस्वीर अवामी कारोबारी तकरीब की है। अदायगी कंपनी के खाते से हुई, इसलिए ये ज़ाती मामला नहीं। ज़ैनब ने कहा, यह हार अहमद ने मुझे तोहफे में दिया था। मुझे नहीं पता कि पैसा कहाँ से आया। सबकी निगाहें अहमद पर टिक गईं। उसने कहा, कंपनी के सरबराह के तौर पर मुझे कुछ सवाबदारी अखराजात की इजाज़त है। बैंक के नुमाइंदे ने पहली बार मुदाखलत की। ज़ाती ज़ेवरात को सवाबदारी कारोबारी खर्च नहीं समझा जा सकता, ख़ास तौर पर जब कंपनी कर्ज़ों की अदायगी के लिए जदोजहद कर रही हो। दूसरी स्क्रीन पर मुलाजमीन की मुस्तकबिल के फंड्स का अल्तवा का तफसील आया। आलिया ने सख्त लहजे में पूछा, 240 मुलाजमीन का हिस्सा रोका क्या? लेकिन इस महीने सीनियर मैनेजमेंट के लिए 2 करोड़ का खसूसी बोनस मंजूर हुआ। उसकी क्या वजह थी? अहमद ने अपनी टाई ढीली की। आलिया ने कहा, नकदी का बहाव आर्जी तौर पर मुतासर था, तो पहले मुलाजमीन का हक दिया जाता या जैनब के लिए जेवरात खरीदे जाते। अहमद ने गुस्से से कहा, तुमसे बात करना नामुमकिन है। आलिया ने कहा, मैं सवाल सरमायाकार के तौर पर पूछ रही हूँ, आप मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर जवाब दें। उसका लहजा ना ऊंचा था ना जज्बाती। यही सुकून अहमद को ज़्यादा बेचैन कर रहा था। कर में वो एक हुक्म देकर बात ख़त्म कर देता था, यहाँ उसका हर लफ्ज़ दस्तावेज में दर्ज हो रहा था। बासत ने अगले मौजू का ऐलान किया। कंपनी ने अगले सरमायाकार के दौर से पहले सालाना महसूल को हकीकी तादाद से तकरीबन 40% ज़्यादा दिखाया था। जिन गाहकों ने सिर्फ आजमाइशी मुआहिदे किए थे, उन्हें मुकम्मल मुआहिदा करार दे दिया गया था। कई मुस्तकबिल की अदायगियों को मौजूदा आमदनी में शामिल किया गया। पुराने माली अफसर राशिद को वीडियो कॉल पर शामिल किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि अहमद और ज़ैनब ने उन पर अदाद शुमार और तब्दीली करने का दबाव डाला था। अख्तलाफ के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अहमद गुस्से से उठा। राशिद को नाकस कारकर्दगी की वजह से हटाया गया। वह बदला ले रहा है। राशिद ने पुरसुकून लहजे में कहा, अगर मेरी कारकर्दगी ख़राब थी तो आपने हटाने से 2 हफ्ते पहले मुझे मुलाजमत एजाज़ क्यों दिया था? स्क्रीन पर ईमेल की कापी दिखाई गई, जिसमें अहमद ने राशिद की तारीफ़ की थी। फिर दूसरी ईमेल खुली, जिसमें ज़ैनब ने लिखा था, असल अदाद-ओ-शुमार मौजूदा पेशकश के मुताबिक नहीं है। नज़रसानी अशुदा वर्जन आज शाम तक चाहिए। डायरेक्टर साहब मुत्तफ़िक हैं। ज़ैनब का चेहरा ज़र्द पड़ गया। यह ईमेल सियाको-सबाहट से बाहर दिखाई दी जा रही है। आलिया ने पूछा, सही सियाको-सबाक क्या हैं? ज़ैनब कुछ नहीं बोल सकी। अजलास को तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। शुरू में पुरएतमाद बैठे अहमद की पेशानी पर पसीना दिखने लगा।
اس کا فون کئی بار کمپین ہوا لیکن کسی کو اسے دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ آخر باسط نے ایک نیا دستاویز کھولا۔ سب سے سنگین معاہدہ یہ ہے۔ اسکرین پر 40 کروڑ کے غیر قانونی قرض کی کاپی تھی۔ قرض کے لیے کمپنی کے کچھ دانشورانہ املاک کے حقوق گروی رکھے گئے تھے۔ معاہدے پر بانی اور چیئر پرسن کی منظوری کے دستخط تھے۔ عالیہ نے اپنے نام کی جعلسازی دیکھی۔ یہ میرے دستخط نہیں ہیں۔ کمرے میں بیٹھے وکیل فوراً چکنا ہو گئے۔ احمد نے کہا، ڈیجیٹل منظوری دی گئی تھی۔ عالیہ نے پوچھا، کس فتح سے؟ ٹیکنیکل ماہر نے جواب دیا، کمپنی کے اندرونی نیٹ ورک سے لاگ ان احمد کے دفتر کے کمپیوٹر سے ہوا۔ عالیہ نے احمد کی طرف دیکھا، آپ نے میرے نام سے منظوری دی؟ احمد نے کہا، مجھے بتایا گیا تھا کہ نمائندگی کا حق میرے پاس ہے۔ عالیہ نے کہا، نمائندگی کا حق آپریشنل ووٹنگ کے لیے تھا۔ اثاثہ گروی رکھنے کے لیے اثر کنٹرولر کی منظوری ضروری تھی۔ احمد نے کہا، یہ صرف تکنیکی معاملہ ہے۔ عالیہ نے کہا، کسی دوسرے شخص کے نام سے منظوری بتانا تکنیکی معاملہ نہیں ہے۔ احمد کرسی سے اٹھ گیا۔ بس یہ پوری ملاقات پہلے سے منصوبہ بند ہے۔ تم مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہو۔ کل تک تم میری بیوی تھی اور آج اچانک سرمایہ کار بن کر بیٹھ گئی۔ اگر تمہارے پاس اتنی طاقت تھی تو پرسوں تک گھر میں خاموش کیوں رہی؟ عالیہ بھی آہستہ سے کھڑی ہوئی، کیونکہ مجھے لگا شادی میں طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ احمد نے کہا، تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ عالیہ نے کہا، میں نے آپ کو آزاد رہنے دیا۔ احمد نے کہا، تم میری جانچ پڑتال کرتی رہی۔ عالیہ نے کہا، اگر کرتی تو حالات یہاں تک نہ پہنچتے۔ احمد کی آواز کانپنے لگی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم طلاق کا بدلہ لینا چاہتی ہو؟ عالیہ نے کچھ لمحے اسے دیکھا۔ اگر میں بدلہ چاہتی تو کل رات سرمایہ کاری واپس لے کر کمپنی کو بند ہونے دیتی، لیکن میں نے ملازمین کے مستقبل کی فنڈ کی ادائیگی کے لیے آخری امداد منظور کر لی ہے۔ میں کمپنی کو بچانا چاہتی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کمپنی کو آپ سے بچنا پڑے گا؟ یہ سن کر آزاد ڈائریکٹروں میں سے ایک نے گہری سانس لی۔ باسط نے باضابطہ تجویز پڑھی، فرانزک جائزے مکمل ہونے تک احمد کی مینیجنگ ڈائریکٹر کے اختیارات محدود کیے جائیں۔ 50 لاکھ سے زائد کی ادائیگیوں کے لیے آزاد کمیٹی کی منظوری ضروری ہے۔ زینب کو کمپنی کے مالی اور ڈیجیٹل ریکارڈ تک رسائی سے عارضی طور پر روکا جائے۔ اگلے 48 گھنٹوں میں تمام آلات جائزے کے لیے جمع کرائے جائیں۔ احمد نے میز پر مکہ مارا، یہ میری کمپنی ہے۔ عالیہ نے کہا، کمپنی ان ملازمین کی بھی ہے جنہوں نے برسوں محنت کی، سرمایہ کاروں کی بھی ہے جن کا پیسہ لگا ہے، گاہک بھی اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ نے اسے اپنی ذاتی تجوری سمجھ لیا ہے، اس لیے آج یہ صورتحال ہے۔ زینب نے گھبرا کر پوچھا، کیا آپ مجھے معطل کر رہی ہیں؟ باسط نے کہا، عارضی انتظامی روک، جانچ مکمل ہونے تک آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ باسط نے کہا، کمیٹی کو اختیار ہے۔ زینب نے احمد کا بازو پکڑا، آپ کچھ کہیں؟ احمد نے اس کا ہاتھ جھٹکا، پہلے مجھے بتاؤ، پوچھا کہ کمپنی کو 4 کروڑ کیوں دیے کہ؟ زینب دھنگ رہ گئی، آپ بھی مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ احمد نے کہا، میں نے سوال پوچھا ہے، ہر ادائیگی آپ کی معلومات سے ہوئی۔ زینب نے کہا، آپ نے کہا تھا خدمات حقیقی ہیں اور سرمایہ کاری آنے کے بعد کوئی جانچ نہیں کرے گا۔ الفاظ نکلتے ہی زینب نے اپنے ہونٹ بند کر لیے۔ کمرے میں موجود سب نے یہ جملہ سن لیا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ چپ رہو، زینب نے کہا، اب مجھے چپ رہنے کو کہہ رہے ہیں؟ رکاوٹیں ہٹا دی ہیں۔ آج پہلی سنگین چیلنج آتے ہی وہ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے تھے۔ عالیہ نے اجلاس ختم ہوتے ہوئے کہا، تمام فیصلے تحریری طور پر بھیجے جائیں گے۔ جانچ کے دوران کوئی بھی افسر ڈیٹا حذف کرنے، ملازمین پر دباؤ ڈالنے یا میڈیا کو گمراہ کن معلومات دینے کی کوشش نہ کرے۔ احمد اس کی طرف مڑا، اگر میں اس فیصلے کو چیلنج کروں تو؟ عالیہ نے کہا، آپ کو پورا حق ہے، وہی حق جو آپ نے مجھے طلاق نامے میں عدالت جانے سے بچنے کا مشورہ دیتے وقت چھوٹا سمجھا تھا۔ اجلاس ختم ہوا، لوگ ایک ایک کر کے باہر جانے لگے۔ زینب تیزی سے نکلنا چاہتی تھی لیکن ٹیکنیکل ٹیم نے اسے کمپنی کا لیپ ٹاپ اور فون جمع کرنے کو کہا۔ اس نے احتجاج کیا، پھر وکلا کی موجودگی دیکھ کر آلات میز پر رکھ دیے۔ احمد وہیں کھڑا رہا۔ کمرہ تقریباً خالی ہو چکا تھا، صرف عالیہ، باسط اور 2 وکیل باقی تھے۔ احمد نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے تم سے اکیلے بات کرنی ہے۔ عالیہ نے باسط کی طرف دیکھا، وہ باہر چلے گئے لیکن شیشے کے دروازے کے دوسری طرف رک گئے۔ احمد کچھ قدم آگے بڑھا، تم نے یہ سب منصوبہ بنا رکھا تھا؟ عالیہ نے کہا، میں نے طلاق کی منصوبہ بندی نہیں کی، لیکن دستاویزات، آڈٹ، ووٹنگ کا حق سب تیار تھا، کیونکہ سرمایہ کاری کا انتظام برسوں سے ہوتا آیا ہے، صرف آپ نے اسے دیکھنا نہیں چاہا۔ احمد نے کہا، تم نے جان بوجھ کر خود کو سادہ دکھایا۔ عالیہ کو اس کا الزام عجیب لگا، سادہ ہونا جرم ہے۔ احمد نے کہا، تم سمجھتی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ٹرسٹ کنٹرول کرتی ہو
وہ جملہ مکمل نہیں کر سکا۔ عالیہ نے پوچھا تو کیا کرتے؟ احمد کی آنکھیں جھک گئیں۔ چیزیں مختلف ہوتی، طلاق نہ دیتا، شاید جلدی نہ کرتا، زینب کے ساتھ تعلق نہ رکھتا۔ عالیہ نے لمبی سانس لی۔ یہی فرق ہے، اب آپ کو اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں، آپ کو صرف اس بات کا پچھتاوا ہے کہ جس عورت کو آپ نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا وہ آپ کے اندازے سے زیادہ طاقتور نکلی۔ احمد نے کہا، میں نے تمہیں کبھی چوٹ نہیں پہنچانی چاہی تھی۔ عالیہ نے کہا، کل آپ کی والدہ نے میرے ہاتھوں سے چوڑیاں اتروائیں، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے زینب سے کہا کہ وہ اس خاندان کا مستقبل ہے، آپ نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ آپ نے مجھے رات میں گھر سے نکالنے کو کہا، ڈیجیٹل کوڈ بدل دیا، ان میں سے کون سا کام انجانے میں ہوا؟ احمد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ جب نرمی سے فائدہ نہیں ہوا تو اس کا پرانا غرور واپس آیا۔ تم خود کو بہت اونچا سمجھنے لگی ہو۔ عالیہ نے کہا، نہیں، میں پہلی بار اپنے آپ کو اتنا ہی دیکھ رہی ہوں جتنی میں ہوں۔ یہ کمپنی میں نے بنائی ہے، میں نے کبھی اس کا سہرا نہیں مانگا۔ احمد نے کہا، آج مانگ رہی ہو؟ عالیہ نے کہا، نہیں، آج صرف اپنے پیسے، اپنے حق اور اپنے ملازمین کی حفاظت اور جواب مانگ رہی ہوں۔ احمد کچھ لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، اگر کمپنی کو نقصان ہوا تو ذمہ دار تم ہوگی۔ عالیہ نے جواب دیا، اگر سچ سامنے آنے سے کمپنی ٹوٹتی ہے تو وہ پہلے ہی جھوٹ پر بنائی گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ ہوٹل کی لابی میں پہنچتے ہی کئی صحافی دکھائی دیے۔ سرکاری سرمایہ کاری کے رات کے کھانے کی اچانک منسوخی ہونے کی خبر باہر پہنچ چکی تھی۔ باسط نے سیکیورٹی اہلکاروں سے عالیہ کو پچھلے راستے سے نکالنے کو کہا۔ کار میں بیٹھتے ہی اس کے فون پر فاطمہ کے کئی پیغامات تھے۔ تم نے احمد کی توہین کی، جو غلط فہمی ہے، اگر آ کر سلجھاؤ۔ خاندان کی بات باہر لے جانا اچھی عورت کا کام نہیں۔ عالیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس شام احمد ٹیکنالوجیز کے ملازمین کے درمیان افواہ پھیل گئی کہ نیا سرمایہ کاری رک گئی ہے۔ کچھ لوگ اپنی نوکری سے ڈرنے لگے۔ کسی نے کہا کمپنی بک رہی ہے، کسی نے کہا بانی کو گرفتار کیا جائے گا، کسی نے زینب کے ساتھ احمد کی پرانی تصاویر شیئر کرنا شروع کر دی۔ عالیہ نے فوری طور پر ایک اندرونی اعلان جاری کروایا، جس میں واضح لکھا گیا کہ کمپنی کا روزانہ کام جاری رہے گا، ملازمین کی تنخواہ اور قانونی حصہ محفوظ ہے، کسی بڑے پیمانے پر چھٹائی کا منصوبہ نہیں، اور جائزہ صرف انتظامی شفافیت کے لیے ہو رہا ہے۔ اعلان میں نہ احمد کی توہین تھی، نہ زینب کا نام۔ باسط نے پوچھا، آپ اتنی احتیاط کیوں برت رہی ہیں؟ احمد نے آپ کے خلاف کوئی احتیاط نہیں برتی۔ عالیہ نے جواب دیا، کیونکہ میں احمد نہیں ہوں۔ لیکن احمد نے وہی صبر نہیں رکھا۔ اگلی صبح کئی آن لائن نیوز پورٹلز پر ایک جیسی خبریں شائع ہوئیں۔ باسط نے پوچھا، آپ اتنی احتیاط کیوں برت رہی ہیں؟ احمد نے آپ کے خلاف کوئی احتیاط نہیں برتی۔ عالیہ نے جواب دیا، کیونکہ میں احمد نہیں ہوں۔ لیکن احمد نے وہی صبر نہیں رکھا۔ اگلی صبح کئی آن لائن نیوز پورٹلز پر ایک جیسی خبریں شائع ہوئیں۔ ذاتی تنازع کی وجہ سے پاکستانی ٹیک کمپنی کی فنڈنگ روکی گئی۔ بانی کی بیوی نے ازدواجی تنازع کے بعد سرمایہ کار پر دباؤ ڈالا۔ کیا گھریلو جھگڑا کاروبار کو تباہ کر سکتا ہے؟ لاہور کی ابھرتی ہوئی ٹیک کمپنی کے بارے میں اتنی مماثلت تھی کہ صاف ظاہر تھا کوئی پیشہ ور ٹیم پیچھے کام کر رہی تھی۔ ایک نیوز چینل نے احمد کا ریکارڈ شدہ بیان چلایا۔ وہ کیمرے کے سامنے تھکا اور دکھی دکھ رہا تھا۔ میں اپنی ذاتی زندگی پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ازدواجی اختلافات کو سینکڑوں ملازمین کی روزی روٹی متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کا احترام کیا، شاید اس وقت وہ جذباتی طور پر زخمی ہیں۔ عالیہ نے ویڈیو بغیر پلک چپکائے دیکھی۔ احمد نے خود کو مظلوم اور اسے وسیلہ غیر مستحکم بیوی کے طور پر پیش کر دیا تھا۔ چند گھنٹوں میں سوشل میڈیا پر تبصرہ آنے لگے۔ شوہر کامیاب ہوا تو بیوی نے کمپنی چھین لی۔ گھریلو عورت پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ شوہر کا جھگڑا ملازمین پر کیوں تھوپا؟ کسی کو کمپنی کے کھاتے کی معلومات نہیں تھی، کسی نے دستاویزات نہیں دیکھی تھی، پھر بھی لوگ فیصلے سنا رہے تھے۔ باسط نے کہا، ہم فوری قانونی نوٹس بھیج سکتے ہیں۔ عالیہ نے کہا، صرف نوٹس کافی نہیں ہوگا۔ وہ چاہتا ہے میں پردے کے پیچھے رہوں تاکہ اپنی کہانی سنا سکے۔ تو میں ملازمین اور چھوٹے سرمایہ کاروں سے براہ راست بات کروں گی۔ اسی دوپہر کمپنی کے احاطے کی آڈیٹوریم میں خصوصی میٹنگ بلائی گئی۔ خبر پھیلتے ہی باہر صحافی جمع ہو گئے۔ عالیہ کے پہنچنے سے پہلے احمد اسٹیج پر تھا۔ اس نے ملازمین سے کہا کہ بیرونی سرمایہ کار کمپنی پر ناجائز کنٹرول چاہتا ہے۔ اس نے کسی مالی بے ضابطگی کا ذکر نہیں کیا۔ عالیہ آڈیٹوریم کے پیچھے سے اندر آئی۔ بہت سے ملازمین اسے پہچانتے تھے۔ وہ اسے صرف احمد کی خاموش بیوی سمجھتے تھے، جو کبھی کبھی تہواروں پر دفتر آ کر مٹھائی تقسیم کرتی تھی۔ اس کے اسٹیج کی طرف بڑھتے ہی احمد کا چہرہ تنا۔ اس نے کہا، یہ اندرونی میٹنگ ہے۔ عالیہ نے جواب دیا، اس لیے میں آئی ہوں، ان لوگوں کے لیے جن کے نام پر آپ میڈیا میں ہمدردی مانگ رہے ہیں۔
वो स्टेज पर खड़ी हुई और मुलाजमीन की तरफ देखा। मैं आपको ज़ाती तनाज़ा सुनाने नहीं आई, मैं सिर्फ 3 बातें वाज़ेह करना चाहती हूँ। पहली, आपकी तनख्वाह और मुस्तकबिल का फ़ंड महफूज रहेगा। दूसरी, कंपनी बंद नहीं की जा रही। तीसरी, सरमायाकारी इसलिए रोकी गई क्योंकि खातों में ऐसी अदायगियाँ और महसूल के बयानात मिले हैं जिनकी आज़ादाना जांच ज़रूरी है। एक मुलाज़िम ने पूछा, क्या यह तलाक की वजह से नहीं हो रहा? आलिया ने कहा, अगर दस्तावेज़ात साफ मिली तो सरमायाकारी आगे बढ़ेगी, चाहे मेरी शादी बचे या ना बचे। अगर दस्तावेज़ात गलत मिली तो सरमायाकारी नहीं होगी, चाहे मैं अहमद की बीवी रहूं या ना रहूं। ऑडिटोरियम खामोश हो गया। दूसरे मुलाजिम ने पूछा, आपका कंपनी से क्या ताल्लुक़ है? आलिया ने पहली बार अवामी तौर पर सच बताया। 3 साल पहले जब कंपनी के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, रहमान फैमिली ट्रस्ट के ज़रिए पहली बड़ी सरमायाकारी मैंने मंजूर की थी। कंपनी के 20% बयाना वोटिंग का हक इसी ट्रस्ट के कंट्रोल में है। बहुत से चेहरों पर हैरत फैल गई। अहमद ने माइक पकड़ने की कोशिश की। ये आधा सच है, कंपनी मेरी मेहनत से बनी है। आलिया ने उसकी तरफ देखा। मैंने आपकी मेहनत से इनकार नहीं किया, लेकिन क्या आप मुलाजमीन के सामने ये भी बताएंगे कि उनके मुस्तकबिल के फ़ंड की अदायगी रोत का ज़ाती ज़ेवरात और मुतलका कंपनी को पैसे दिए गए थे? ऑडिटोरियम में बेचैनी फैल गई। अहमद के पास जवाब नहीं था। उसने गुस्से से कहा, जांच मुकम्मल होने से पहले इल्ज़ाम लगाना और गैर जिम्मेदाराना है। आलिया ने कहा, इसलिए मैंने आपको मुजरिम करार नहीं दिया। मैंने सिर्फ अदायगियों और दस्तावेज़ात का जिक्र किया है। फैसला जांच के बाद होगा। आलिया की पुरसुकून और अहमद की बेचैनी के दरमियान फ़र्क सबके सामने वाज़ेह था। मीटिंग ख़त्म होने तक मुलाज़मीन का खौफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उनकी निगाह बदल चुकी थी। अब ये सिर्फ एक गसीली बीवी की कहानी नहीं थी। शाम को आलिया अपने अपार्टमेंट वापस आई तो सिक्योरिटी ऑफिस से इत्तला मिली कि एक खातून उससे मिलना चाहती है। स्क्रीन पर ज़ैनब खड़ी थी। आज उसने ना ख़ानदानी चूड़ी पहनी थी, ना महंगा ज़ेवर। चेहरे पर मेकअप बहुत कम था और आंखों के नीचे नींद की कमी वाज़ेह थी। आलिया ने इंटरकॉम पर पूछा, तुम क्यों आई हो? ज़ैनब ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, क्योंकि अहमद मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने की तैयारी कर रहा है। आलिया कुछ लम्हे खामोश रही। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? ज़ैनब ने अपने बैग से एक छोटी पिन ड्राइव निकालकर कैमरे के सामने दिखाई, क्योंकि इसमें उन खातों और ईमेल्स की कापियां हैं जिन्हें आज दोपहर तबाह करने का हुक्म दिया गया। साथ एक रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कह रहा है कि अगर जांच आगे बढ़ी तो तमाम दस्तखत मेरे नाम कर दिए जाएंगे। आलिया की आंखें तंग हो गईं। ज़ैनब की आवाज़ टूटने लगी। मैंने गलत किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन उसने मुझसे वादा किया था कि हम साथ रहेंगे। आज उसने अपने वकील से कहा कि मैं सिर्फ एक मुलाजिम हूँ और उसने कभी मेरे साथ कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं रखा। कल तक वो औरत जो आलिया का घर और कंपनी छीनने का दावा कर रही थी, आज उसी के घर के बाहर नहीं बल्कि आलिया के दरवाजे पर पनाह मांग रही थी। आलिया ने सिक्योरिटी एहलकार से कहा, इसे ऊपर भेज दें। चंद मिनट बाद दरवाज़ा खुला। ज़ैनब अंदर आई, लेकिन बैठी नहीं। उसने पेन ड्राइव आलिया के सामने रख दी। अगर मैं सब बता दूं तो क्या आप मुझे बचाएंगी? आलिया ने पेन ड्राइव उठाई। मैं तुम्हें छोटे इल्ज़ामात से बचा सकती हूँ, तुम्हारे अपने किए के अंजाम से नहीं। ज़ैनब की आंखों में मौजूद घुटन गहरी हो गई। आलिया ने लैपटॉप खोला और पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर कई फ़ोल्डर दिखाई दिए। उनमें से सबसे ऊपर एक फ़ोल्डर का नाम था, आखिरी हिफाजती मंसूबा। आलिया ने उसे खोला। पहली रिकॉर्डिंग में अहमद की आवाज़ साफ सुनाई दी। तमाम मुतलका अदायगियाँ ज़ैनब की मंजूरी से हुई दिखाई जाएं। अगर बात बाहर निकली तो कहेंगे उसने रिश्तेदारों के साथ मिलकर धोखा दिया। कोर्ट को समझाने के लिए इतना काफ़ी होगा। ज़ैनब कुर्सी पर बैठ गई और दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। आलिया रिकॉर्डिंग सुनती रही। हर जुमले के साथ ये वाज़ेह होता गया कि अहमद सिर्फ कंपनी के अदाद शुमार ही नहीं बदल रहा था, वो अपने आसपास के हर शख्स को ज़रूरत पड़ने पर कुर्बान करने वाली शय समझता था। पहले उसने आलिया को छोड़ा, अब ज़ैनब की बारी थी। आलिया ने रिकॉर्डिंग रोक कर पूछा, तुम पूरा सच बताने के लिए तैयार हो? ज़ैनब ने आहिस्ता आहिस्ता हाथ नीचे किए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें मोहब्बत का धब्बा नहीं, धोखा खाए हुए खुदगर्जी की आग थी। उसने कहा, हाँ, क्योंकि अगर वो मुझे डुबोना चाहता है तो मैं उसे अकेले किनारे तक नहीं पहुंचने दूंगी। आलिया ने उसे गौर से देखा। उसे ज़ैनब पर रहम नहीं आया, ना इत्मीनान हुआ। सिर्फ ये समझ आई कि अहमद ने जिस नई ज़िंदगी के लिए 7 साल की शादी तोड़ी, वो रिश्ता पहली आंधी भी नहीं झेल सका। लेकिन अब उनकी करीबी दोस्त ही वो दरवाज़ा खोलने वाली थी, जिसके पीछे अहमद के ज़वाल का आखिरी सच छुपा था। ज़ैनब ने पानी का गिलास उठाया, लेकिन उसके हाथ इतने काँप रहे थे कि गिलास से टकराकर आवाज़ आई।
عالیہ اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر آخری حفاظتی منصوبہ کھلا تھا۔ ریکارڈنگ میں احمد کی آواز اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ عالیہ نے پوچھا، اس پن ڈرائیو میں صرف ریکارڈنگ ہے یا بینک کھاتوں کی معلومات بھی؟ زینب نے آنسو پوچھے، سب کچھ ہے۔ جن کمپنیوں کے ذریعے پیسے بھیجے گئے ان کے پاسورڈز، ای میلز، ادائیگی کی فہرست اور کراچی والے فلیٹ کے دستاویزات۔ کچھ رقم دبئی کے ایک کھاتے میں بھیجنے کی تیاری تھی لیکن ابھی صرف پیشگی کارروائی ہوئی ہے۔ عالیہ نے پوچھا، اس کے کس ہدایت پر؟ زینب نے نظر چکا لی۔ میں نے کمپنیاں ڈھونڈیں، اپنی بہن اور بھائی کے نام پر کاغذات تیار کروائے، کچھ معاہدے میں نے بنائے۔ میں نے سوچا تھا سرمایہ کاری آنے کے بعد ہم پیسے واپس کر کے بہانہ بنا لیں گے۔ عالیہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ چوری کو بعد میں درست کرنے کی منصوبہ بندی اسے جائز نہیں بناتی۔ زینب نے کہا، مجھے معلوم ہے، ابھی تک تمہیں صرف یہ پتہ چلا ہے کہ احمد تمہیں بچانے والا نہیں۔ اپنے کیے کی سنگینی شاید تمہیں ابھی بھی پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ زینب نے پہلی بار سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے نفرت سے دیکھ رہی ہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کا گھر چھینا؟ عالیہ نے پرسکون لہجے میں کہا، تم نے میرا گھر نہیں چھینا۔ جس جگہ عزت نہیں تھی وہ گھر پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ تم نے صرف مجھے سچ جلدی دکھایا۔ زینب نے کہا، میں نے آپ کے شوہر کے ساتھ تعلق رکھا، ہاں۔ میں نے آپ کی جگہ لینے کی کوشش کی، ہاں۔ پھر بھی آپ مجھے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کر رہی؟ عالیہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ کیونکہ میں فیصلہ غصے سے نہیں کروں گی۔ تمہارا بیان، دستاویزات اور تعاون قانونی ٹیم درج کرے گی۔ اس کے بعد جو ذمہ داری تمہاری ہے وہ تمہیں اٹھانی ہوگی۔ لیکن احمد اپنا جرم تمہارے سر رکھ کر خود بے قصور نہیں بن سکے گا۔ زینب کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ آپ اسے نہیں سمجھتی۔ وہ کہتا تھا آپ صرف اس کے پیسے اور نام پر جی رہی ہیں۔ اس نے کہا تھا کمپنی بننے سے پہلے آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ عالیہ ہلکی سی مسکرائی لیکن اس مسکراہٹ میں تھکن تھی۔ ہر دھوکے باز خود کو درست ثابت کرنے کے لیے پہلے ایک کہانی بناتا ہے۔ اس کہانی میں بیوی ہمیشہ غیر حساس ہوتی ہے، شوہر اکیلے ہوتا ہے اور تیسری عورت اسے سمجھنے والی واحد شخص ہوتی ہے۔ زینب نے دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا اس نے کبھی آپ سے محبت کی تھی؟ یہ سوال عالیہ کو اندر تک چھو گیا۔ اس نے فوراً جواب نہیں دیا۔ شاید کی تھی، اس نے آخر کہا، جب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تب وہ میرے پاس سچ سچ بولتا تھا۔ لیکن کامیابی نے اس کے اندر نیا انسان پیدا نہیں کیا، اس نے صرف وہ خود غرضی ظاہر کی جسے مشکل دنوں میں دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اسی وقت باسط اور قانونی ٹیم کو بلایا گیا۔ زینب کا باضابطہ بیان کئی گھنٹوں تک درج ہوا۔ اس نے ہر کھاتے، ادائیگی اور جعلی معاہدے کی تفصیل بتائی۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کمپنی کے اندرونی سرور سے کچھ دستاویزات مٹانے کی کوشش اس نے کی تھی، لیکن احمد کے کہنے پر۔ اس کا تعاون اسے بے قصور نہیں بناتا تھا، مگر اس سے پوری منصوبہ بندی کا ڈھانچہ سامنے آ گیا۔ جانچ میں یہ بھی پتہ چلا کہ احمد نے آنے والی سرمایہ کاری کا ایک حصہ ایک نئی ذیلی کمپنی میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ تنظیم اس کے ذاتی کنٹرول میں ہوتی۔ عوامی طور پر اسے بین الاقوامی توسیع کا مرکز بتایا جاتا، لیکن حقیقی مقصد کمپنی کے احساسوں کو آہستہ آہستہ اصل شیئر ہولڈرز کی پہنچ سے باہر لے جانا تھا۔ باسط نے رپورٹ پڑھ کر کہا، اگر نیا سرمایہ کاری جاری ہو جاتا تو 6 مہینے بعد اصل کمپنی کے پاس زیادہ کچھ نہیں رہتا اور قیمتی معاہدے دوسری تنظیم میں چلے جاتے۔ عالیہ نے پوچھا، کیا بورڈز کے کسی اور رکن کو اطلاع تھی؟ باسط نے کہا، ایک سینئر افسر کو شبہ تھا لیکن مکمل تفصیلات صرف احمد اور زینب کے پاس تھیں۔ زینب نے فوراً کہا، مجھے پوری بات شروع میں نہیں معلوم تھی۔ اس نے پہلے کہا تھا یہ ٹیکس کے انتظامات کے لیے ہے۔ عالیہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر کب سے سب سمجھ آیا؟ زینب خاموش رہی۔ جب اس نے تمہیں نئے بورڈ میں جگہ دینے کا وعدہ کیا۔ زینب نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ اس شام خصوصی بورڈ میٹنگ بلائی گئی۔ احمد کو باضابطہ طور پر مطلع کیا گیا کہ اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے اختیارات معطل کرنے کی تجویز پیش کی جائے گی۔ اسے میٹنگ میں اپنا پہلو رکھنے کا موقع دیا جائے گا۔ جب وہ پہنچا تو اس کا چہرہ 2 دنوں میں کئی سال بوڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، داڑھی درست نہیں تھی، مہنگا سوٹ پہنے ہونے کے باوجود اس کا اعتماد غائب تھا۔ میٹنگ میں عالیہ، باسط، آزاد ڈائریکٹر، قانونی مشیر اور بینک کے نمائندے موجود تھے۔ زینب دوسری طرف اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ احمد نے اسے دیکھتے ہی کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زینب نے جواب نہیں دیا۔ باسط نے میٹنگ شروع کی۔ آج کمپنی کے سامنے نئے دستاویزات اور ایک معاون افسر کا بیان شامل ہوا ہے۔ ان میں اثاثوں کی منتقلی، معاہدہ دھوکہ، جھوٹے محصول کے بیان اور جانچ کو متاثر کرنے کی کوشش کے ثبوت ہیں۔ احمد نے زینب کی طرف دیکھا، تم نے کیا دیا ہے؟
ज़ैनब के वकील ने कहा, मेरी मौक्कल सिर्फ कमेटी के सवालात का जवाब दे रही है। अहमद ने कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। ज़ैनब अचानक हंस पड़ी। उसकी हंसी दर्द और धोखे से भरपूर थी। नहीं अहमद, आपने मुझे सिर्फ वो दिया जो कंपनी के पैसों से खरीदा गया था। फिर जांच शुरू होते ही आपने तय कर लिया कि सब जुर्म मेरे नाम कर देंगे। अहमद ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। बासत ने रिकॉर्डिंग चला दी। कमरे में अहमद की आवाज़ सुनाई दी। तमाम अदायगियाँ ज़ैनब की मंजूरी से हुई दिखाईं। बोर्ड को बताएंगे कि उसने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कंपनी को धोखा दिया। रिकॉर्डिंग ख़त्म होते ही अहमद का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। कुछ लम्हे बाद उसने कहा, ये सियाको सबाहट से बाहर है। आलिया ने पूछा, हर सबूत आपके लिए सियाको सबाहट से बाहर क्यों होता है? अहमद उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हें यही चाहिए था। पहले तुमने बीवी बनकर मुझे कंट्रोल किया, अब सरमायाकार बनकर मेरी कंपनी लेना चाहती हो। आलिया ने कहा, मैं कंपनी नहीं लेना चाहती। अहमद ने कहा, फिर क्या चाहती हो? आलिया ने कहा कि कंपनी उन लोगों के हाथ में रहे जो उसे अपनी ज़ाती जायदाद ना समझें। अहमद ने कहा, यह कंपनी मेरे ख्याल से बनी थी। आज़ाद डायरेक्टर सलीम ने पहली बार मदाखलत की। ख्याल आपका था लेकिन इब्तदाई तकनीकी ढांचा मेरी टीम ने बनाया। आलिया ने ट्रस्ट की सरमाया दी। मुलाजमीन ने दिन रात काम किया। ग्राहकों ने भरोसा किया। आपने कब से ये मान लिया कि बाकी सब सिर्फ आपके नाम को बड़ा करने के लिए था? अहमद ने सलीम की तरफ गुस्से से देखा। आपको 6 महीने पहले ओहदे से हटाया गया था, इसलिए अब आप बदले ले रहे हैं। सलीम ने एक पुरानी नोट बुक मेज़ पर रखी। जब हमने आगाज़ किया था, तुमने पहले सफ़े पर लिखा था, कंपनी किसी एक शख्स से बड़ी होगी। मैं आज तुम्हें तुम्हारा ही जुमला वापस दे रहा हूँ। अहमद ने नोटबुक की तरफ देखा, लेकिन उसे छुआ नहीं। कानूनी मशीर ने तजावीज़ पढ़ी। जांच मुकम्मल होने तक अहमद को मैनेजिंग डायरेक्टर और किसी भी माली फैसले के ओहदे से हटाया जाए। कंपनी की असासों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अबूरी इंतज़ामी कमेटी बनाई जाए। मशकूक अदायगियों की अतला मुतल्लका रेगुलेटर और तहकीकाती अदारे को दी जाए। वोटिंग शुरू हुई। एक-एक करके हाथ उठते गए। आलिया ने आखिर में अपना वोट दिया। तजवीज़ मंजूर हो गई। अहमद कुछ लम्हे अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, जैसे उसे अल्फाज का मफ़हूम समझने में वक़्त लग रहा हो। फिर वो आलिया की तरफ झुका। तुमने मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया। आलिया ने कहा, आपको आपके फैसलों से निकाला है। अहमद ने कहा, तुम चाहती तो उसे रोक सकती थी। आलिया ने कहा, मैं बरसों तक रोकती रहूं। हर बार आपने अपनी गलतियों का असर आप तक पहुंचने से रोकने के लिए हमारे दरमियान दीवार बनाई। इसलिए आपको लगा कि कोई नतीजा कभी आएगा ही नहीं। अहमद ने कहा, हम शौहर बीवी हैं। आलिया ने कहा, यह जुमला आपको सिर्फ मुश्किल में क्यों याद आता है? अहमद की आवाज़ धीमी पड़ गई। मैं तलाक वापस ले लूँगा। कमरे में बैठे कई लोगों ने नज़रें झुका लीं। वो जानते थे कि अब ये कारोबारी बात नहीं रही। आलिया ने उससे पूछा, क्यों? अहमद ने कहा, क्योंकि मैंने गलती की। आलिया ने पूछा, कौन सी गलती? मुझे छोड़ना या मेरी हकीकी माली हैसियत जानने के बाद भी न छोड़ना? अहमद खामोश रहा। उसकी खामोशी जवाब थी। आलिया ने दस्तावेज़ात बंद कर दी। मीटिंग ख़त्म है। वो उठी तो अहमद भी फ़ौरन खड़ा हो गया। आलिया सिर्फ 5 मिनट। वो बाहर तक उसके पीछे आया। बासत ने सिक्योरिटी बुलवाना चाही लेकिन आलिया ने हाथ से रोक दिया। गलियारे के आखिर में अहमद ने कहा, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई। ज़ैनब ने मुझे मुतासर किया। आलिया ने कहा, ज़ैनब ने आपके हाथ से कोई दस्तखत ज़बरदस्ती नहीं करवाए। अहमद ने कहा, मैं दबाव में था। कंपनी बढ़ रही थी। सरमायाकारी आने वाली थी। और आप उस वक़्त अपनी ज़िंदगी के सबसे बाअसर दौर में थे। किस दबाव की बात कर रहे हैं? अहमद ने सर पकड़ लिया। मुझे लगा मैं सब सँभाल सकता हूँ। आलिया ने पूछा, मुझे भी सँभालने के काबिल चीज़ समझते थे? घर में रखी ऐसी बीवी जिसे जब चाहो इज़्ज़त दो और जब चाहो बाहर निकाल दो। अहमद ने कहा, मैंने गुस्से में कहा था। आलिया ने कहा, तलाक के कागजात वकील ने तैयार किए, जायदाद की शराइत लिखी, घर का कोड बदला, आपकी वालिदा को पहले से बताया गया, ज़ैनब को ईद के दिन बुलाया गया। इनमें से कौन सा काम अचानक गुस्से में हुआ? अहमद के पास फिर कोई जवाब नहीं था। आलिया उसके पास से आगे बढ़ी। पीछे से उसकी आवाज़ आई, क्या तुमने कभी सच में मुझसे मोहब्बत की थी? आलिया के कदम रुक गए। वही सवाल ज़ैनब ने भी पूछा था, लेकिन अहमद के मुंह से सुनकर उसका मतलब मुख्तलिफ था। वह जवाब नहीं ढूंढ रहा था। वो ये जानना चाहता था कि क्या उसके अंदर अब भी कोई ऐसा धागा बचा है जिसे पकड़कर वो अपने हाल को बचा सके। आलिया ने पीछे मुड़े बगैर कहा, मैंने इतनी मोहब्बत की कि अपनी पहचान छोटी कर ली ताकि आपको कभी छोटा ना लगे। लेकिन मोहब्बत अपने आप को मिटा देना नहीं है। अगले कुछ दिन मुश्किल थे। कंपनी के बाहर मीडिया जमा रहा।
कुछ न्यूज़ पोर्टल्स ने आलिया को बहादुर डायरेक्टर कहा, कुछ ने उसे बेरहम बीवी कहा। सोशल मीडिया पर लोग उसकी शादी, कपड़ों, चेहरों और किरदार तक पर तबसरा कर रहे थे। कानूनी टीम ने उसे रद्द अमल देने से मना किया, लेकिन आलिया ने एक मुख्तसर अवामी बयान जारी किया। उसने कहा कि कंपनी का जायज़ा ज़ाती अस्तवाजी तनाज़ा से आज़ाद है, मुलाजमीन की आज़ादी और कानूनी हकूक़ महफूज रखे जाएंगे। किसी भी शख्स को जांच मुकम्मल होने से पहले मुजरम करार नहीं दिया जाएगा, लेकिन सरमायाकारों के पैसे और मुलाजमीन के मुस्तकबिल के साथ समझौता नहीं होगा। उसने ना अहमद के ताल्लुकात का जिक्र किया, ना ज़ैनब के साथ हुई ज़ाती ज़िल्लत का। फातिमा को ये सब्र भी ज़िल्लत लगा। एक दिन बगैर इत्तला आलिया के अपार्टमेंट पहुंची। उनके साथ कोई ड्राइवर या रिश्तेदार नहीं था। महंगी साड़ी बिखरी हुई थी, आंखें सूजी हुई थीं। हाथ में वही ख़ानदानी चूड़ियाँ थीं जो उन्होंने ज़ैनब को पहनाई थी। आलिया ने दरवाज़ा खोला, लेकिन उन्हें फ़ौरन अंदर नहीं बुलाया। फातिमा ने कहा, क्या तुम मुझे बाहर ही खड़ी रखोगी? आलिया एक तरफ हट गई। फातिमा अंदर आई, कमरे का मुआयना करने लगी। ये घर तुम्हारा है? आलिया ने कहा, हाँ। फातिमा ने पूछा, अहमद को मालूम था? आलिया ने कहा, नहीं। फातिमा के चेहरे पर कुछ लम्हे वही पुराना लालच दिखा। अपार्टमेंट की कीमत, आलिया की हकीकी दौलत या खोया हुआ नफ़ा। फिर उन्होंने आंखें नीचे कर ली। मैं चूड़ियाँ लौटाने आई हूँ। उन्होंने डब्बा मेज़ पर रखा। आलिया ने उसे नहीं खोला। ये आपकी ख़ानदानी चीज़ें हैं। फातिमा ने कहा, तुम हमारी बहू हो। आलिया ने कहा, उस रात आपने ऐसा नहीं कहा था। फातिमा की आवाज़ टूटने लगी। मुझसे गलती हो गई। आलिया ने कहा, क्यों? फातिमा ने कहा, मैं ज़ैनब की बातों में आ गई। आलिया ने कहा, नहीं, आपने वही किया जो आप करना चाहती थी। ज़ैनब सिर्फ मौका थी। फातिमा ने कुर्सी पकड़ ली। क्या तुम मुझसे इस तरह बात करती थी? आलिया ने कहा, पहले मैं हर बात बर्दाश्त कर लेती थी। फातिमा ने कहा, मैं बड़ी हूँ, उम्र इज्जत मांग सकती है। आलिया ने कहा, लेकिन जिल्लत का हक नहीं। फातिमा बैठ गई। कुछ लम्हे बाद उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। अहमद को बचा लो। आलिया की आंखें सख्त हो गईं। आप मुझसे माफ़ी मांगने नहीं आई, आप अपने बेटे की कुर्सी बचाने आई हैं। फातिमा ने कहा, वो मेरा इकलौता बेटा है। आलिया ने कहा, और मैं 7 साल आपकी बहू थी। जब आपने चूड़ियाँ उतारी तब आपको मेरा कोई ताल्लुक याद नहीं था। फातिमा ने कहा, मैं गुस्से में थी। आलिया ने कहा, आप खुश थीं। फातिमा रोने लगी। घर में दबाव है, बैंक वाले फ़ोन कर रहे हैं, रिश्तेदार सवाल कर रहे हैं, सोसाइटी में लोग बातें बना रहे हैं। अहमद खाना नहीं खा रहा, वो रात भर जागता है। आलिया ने उसके आंसू देखे, लेकिन अंदर वो पुरानी बहू नहीं जागी। या फ़ौरन मान ले, कंधा पकड़ ले और खुद को कसूरवार ठहरा ले। उसने पूछा, आपको सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है, बेटे की गलती का या लोगों को पता चल जाने का? फातिमा ने जवाब नहीं दिया। आलिया ने कहा, यही मसला है। उस खानदान में गलती से ज़्यादा उसके अवामी होने का जुर्म समझा जाता है। आपने अहमद को कभी गलत होने नहीं दिया। हर बार किसी और को कसूरवार ठहराया। पहले पुराने शराकतदारों को, फिर मुलाजमीन को, फिर मुझे। आप ज़ैनब को। फातिमा ने कहा, तो क्या माँ अपने बेटे के साथ ना दे? आलिया ने कहा, साथ देना और उसके जुर्म को छुपाना दो अलग बातें हैं। फातिमा ने चूड़ियों का डब्बा उसकी तरफ धकेल कर कहा, इन्हें रख लो, कल हम तुम्हारे नाम की रुखसत करवा देंगे, तलाक मत होने दो। आलिया के चेहरे पर गहरी उदासी आ गई। आप फिर भी नहीं समझी। आपने उस रात मुझे इसलिए नहीं खोया कि चूड़ियाँ छीन ली थीं। आपने मुझे इसलिए खोया क्योंकि आपको लगा मैं जायदाद और ख़ानदान का नाम के लिए हर जिल्लत बर्दाश्त करूँगी। फातिमा ने पूछा, फिर तुम क्या चाहती हो? आलिया ने कहा, कुछ नहीं। यह जवाब फातिमा के लिए सबसे मुश्किल था। उसीली बहू को मनाया जा सकता है, ज़्यादा जायदाद मांगने वाली औरत से समझौता हो सकता था, लेकिन जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसे पुराने बंधनों से पकड़ना नामुमकिन था। जाते वक़्त फातिमा ने पूछा, क्या तुम उसे जेल भेजना चाहती हो? आलिया ने कहा, मैं किसी को जेल नहीं भेजना चाहती। सबूत मुतल्लका अदारे को दिए जाएंगे, फैसला कानून करेगा। फातिमा ने कहा, तुम उसे बचा सकती हो। आलिया ने कहा, हाँ, जैसे मैं पहले बचाती रही, लेकिन इस बार बचाना उसे और बुरा इंसान बनाएगा। फातिमा चूड़ियों का डब्बा मेज़ पर छोड़कर चली गई। आलिया ने उन्हें दोबारा नहीं पहना। अगले रोज़ उसने वो डब्बा वकील के ज़रिए अहमद ख़ानदान को लौटा दिया। कंपनी की जांच 6 हफ्तों तक चली। आखिरी रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हुई कि माली बयानात को जानबूझकर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था। मुतल्लिका कंपनियों के ज़रिए करोड़ों रुपए बाहर भेजे गए। कुछ रकम वापस हासिल की जा सकती थी, कुछ जायदादें आर्जी तौर पर रोक दी गईं। ज़ैनब ने दोबारा ताअवुन किया, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन ताअवुन और रकम वापस दिलाने की कोशिश को नोट किया गया। उसने अपनी नौकरी खोई, महंगा फ्लैट छोड़ा और कई महीने तक पूछताछ का सामना किया। एक दिन उसने आलिया को छोटा सा पैगाम भेजा, मैं माफ़ी की हकदार नहीं हूँ, फिर भी
آپ نے مجھے صرف دوسری عورت نہیں، ایک ذمہ دار شخص کی طرح دیکھا۔ اس کے لیے شکریہ، عالیہ نے جواب دیا۔ اپنی اگلی زندگی میں کسی مرد کے وعدے سے پہلے اپنے فیصلوں کی ذمہ داری دیکھنا۔ احمد کے خلاف کمپنی اور سرمایہ کاروں نے الگ الگ دعوے کیے۔ اسے مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے سے مستقل ہٹا دیا گیا۔ اس کی ذاتی جائیداد کا ایک حصہ نقصان کی تلافی کے لیے محفوظ کر لیا گیا، لیکن عالیہ نے کمپنی کو بند نہیں ہونے دیا۔ عبوری کمیٹی نے حقیقی پروجیکٹس کو پہچانا۔ جعلی محصول ہٹانے کے بعد کمپنی کی مالیت بہت کم ہو گئی، پھر بھی اس کی بنیادی ٹیکنالوجی مفید تھی۔ 240 ملازمین میں سے زیادہ تر کو برقرار رکھا گیا۔ سینئر افسران کے غیر منصفانہ بونس روک کر ملازمین کا مستقبل کا فنڈ جمع کیا گیا۔ سلیم کو عبوری آپریشنل سربراہ بنا دیا گیا، لیکن عالیہ نے واضح کہا کہ نیا مستقبل قیادت شفاف انتخابی عمل سے چنی جائے گی۔ باسط نے پوچھا، آپ خود چیئر پرسن کیوں نہیں بن جاتی؟ عالیہ نے جواب دیا، میں اپنی زندگی احمد کی چھوڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر نہیں بنانا چاہتی۔ باسط نے کہا، لیکن آپ نے کمپنی بچا لی ہے۔ عالیہ نے کہا، کسی چیز کو بچانا اور اس کا مالک بن جانا ایک بات نہیں۔ اس نے صرف بورڈ کی سرمایہ کاری کمیٹی میں ایک محدود کردار قبول کیا، یعنی آپریشن پروفیشنل کو سونپ دیا گیا۔ طلاق کی آخری سماعت تقریباً 4 مہینے بعد ہوئی۔ لاہور کے خاندانی عدالت کی اس صبح آسمان دھندلا تھا۔ برسات ختم ہوئے کچھ ہفتے ہو چکے تھے، لیکن ہوا میں نمی تھی۔ عالیہ سادہ سفید اور نیلے سوتی ساڑی پہن کر پہنچی۔ اس کے ساتھ وکیل تھا۔ دوسری طرف احمد اکیلے بیٹھا تھا۔ فاطمہ نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے سے بہت بدل چکا تھا۔ چہرے پر چمک ختم ہو چکی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے عالیہ کو دیکھتے ہی اٹھنے کی کوشش کی، پھر واپس بیٹھ گیا۔ رسمی کارروائی مکمل ہوئی۔ جائیداد کے معاہدے میں عالیہ نے 7 کروڑ 50 لاکھ لینے سے انکار کیا۔ اس نے صرف اپنی ذاتی چیزیں اور قانون کے مطابق ضروری دستاویزات مانگی۔ جج نے دونوں سے آخری بار پوچھا، کیا فیصلہ رضاکارانہ طور پر لیا گیا ہے؟ عالیہ نے کہا، ہاں۔ احمد نے کچھ دیر بعد بہت دھیمے لہجے میں کہا، ہاں۔ کاغذات پر دستخط ہوئے۔ باہر نکلتے ہی احمد نے اسے پکارا، عالیہ۔ وہ رکی۔ اس نے کہا، اب میرے پاس تم سے مانگنے کو کچھ نہیں، نہ کمپنی، نہ سرمایہ کاری، نہ گھر۔ میں صرف ایک جواب چاہتا ہوں۔ عالیہ خاموش رہی۔ اگر میں کامیاب نہ ہوتا تو کیا ہم ساتھ رہتے؟ عالیہ نے کہا، شاید، لیکن کامیابی نے آپ کو توڑ دیا۔ احمد نے کہا، نہیں، کامیابی نے مجھے انتخاب دیے۔ آپ نے ان انتخابوں میں عزت، دیانت اور شادی کو شامل نہیں کیا۔ احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے سوچا تھا تم ہمیشہ وہی رہو گی۔ عالیہ نے کہا، اگر آپ کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی تو آپ نے میرے پیار کو میری مجبوری سمجھ لیا۔ احمد نے پوچھا، کیا کوئی راستہ نہیں؟ عالیہ نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ عورت جو برسوں تک اس آدمی کے ساتھ بوڑھی ہونے کا خواب دیکھتی تھی، اس کے لیے صبحیں، تہوار، بیماری، مشکل اور مستقبل سب ایک کہانی کے حصے تھے۔ لیکن سامنے کھڑا آدمی صرف وہ جوان نہیں تھا جس سے اس نے محبت کی تھی، وہ ان تمام فیصلوں کا نتیجہ تھا جو اس نے برسوں میں لیے تھے۔ عالیہ نے کہا، معافی کا راستہ ہو سکتا ہے، لیکن واپسی اسی شادی میں نہیں۔ احمد نے کہا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ عالیہ نے کہا، کبھی نہ کبھی، اپنے ذہنی سکون کے لیے، لیکن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ احمد نے کہا، معافی کا مطلب کسی کو دوبارہ وہی حق دینا نہیں ہوتا جس نے اسے پہلے چوٹ پہنچائی۔ احمد نے سر جھکا لیا۔ عالیہ آگے بڑھی، پھر اس نے آخری بار کہا، میں نے آپ سے اتنا پیار کیا کہ اپنی روشنی چھپا کر رکھی تاکہ آپ کو کبھی چھوٹا نہ لگے، لیکن جو شخص سچ میں محبت کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو اندھیرے میں رہنے پر مجبور نہیں کرتا تاکہ وہ خود چمک سکے۔ وہ چلی گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 1 سال بعد رحمان ٹرسٹ کے نئے مرکز کا افتتاح ہوا۔ اس کا نام تھا سہارا معاشی بحالی مرکز۔ یہ ان خواتین کے لیے بنایا گیا تھا جنہوں نے شادی، بچوں یا خاندان کی دیکھ بھال کی وجہ سے اپنی مالی آزادی چھوڑ دی تھی اور بعد میں مکمل طور پر دوسروں پر منحصر ہو گئی تھی۔ وہاں انہیں مالی خواندگی، قانونی حقوق، ڈیجیٹل مہارتیں اور دوبارہ کام شروع کرنے کی ترتیب دی جاتی تھی۔ افتتاح کے دن اسٹیج پر بڑی کمپنیوں کے ڈائریکٹرز اور صحافی موجود تھے، لیکن عالیہ نے اپنے خطاب میں احمد کا نام نہیں لیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، گھر سنبھالنے والی عورت بے روزگار نہیں ہوتی، اس کا کام صرف تنخواہ کی پرچی پر درج نہیں ہوتا۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب خاندان اس کی قربانی کو اس کی کمزوری سمجھ لیتا ہے۔ ہر عورت کو شادی میں اعتماد رکھنا چاہیے، لیکن اپنے نام کی پہچان، اپنی قانونی سمجھ اور مالی فیصلے لینے کی صلاحیت بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔
पहली कतार में बैठी तकरीबन 50 खवातीन ने तालियां बजाईं। उनमें कोई बरसों बाद नौकरी पर वापस आना चाहती थी, कोई छोटे कारोबार के लिए कर्ज लेना चाहती थी, कोई सिर्फ अपना बैंक अकाउंट खुद चलाना सीख रही थी। प्रोग्राम के बाद बासत ने आलिया को एक खबर दिखाई। अहमद टेक्नोलॉजीज नई क्यादत में मुनाफा में वापस आ रही है। कंपनी ने अपना नाम बदलकर नेक्स्ट व्यू सिस्टम्स कर लिया था। कम मुलाजमीन को बरकरार रखा गया था, लेकिन दो हकीकी मसनूआत मार्केट में कामयाब हुई थी। नीचे एक छोटी सी खबर थी कि अहमद ने माली मुआहदे की शराइत कबूल कर ली थी और अब एक छोटे मशावराती फर्म में काम कर रहा था। बासत ने पूछा, कुछ महसूस हुआ? आलिया ने स्क्रीन बंद कर दी। हाँ, बासत ने कहा, क्या अच्छा लगा कि कंपनी बच गई? आलिया ने खिड़की के बाहर देखा। शाम की धूप तरबीती मरकज़ के आंगन में पड़ रही थी। कुछ ख़वातीन चाय लेकर सीढ़ियों पर बैठी थीं। उनकी बातें और हंसी हवा में फैल रही थीं। उसने कहा, वो अब अपनी कहानी खुद लिखेगा। मैं उसकी कामयाबी को अपनी ज़िंदगी का अंजाम नहीं बनाऊंगी। उस दिन घर लौटकर आलिया ने वालदा की घड़ी उतारी और मेज़ पर रखी। उस मेज़ के पास उसकी नई मनसूबे की फाइलें थीं। दीवार पर कोई शादी की तस्वीर नहीं थी, लेकिन उसने पुराने बरसों को मटाया नहीं था। वो उसकी कहानी का हिस्सा थे, उसकी मुकम्मल शनाख्त नहीं। कभी-कभी इंसान को धोखा देने वाला शख्स उसका सबसे बड़ा नुकसान नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम उसके रवैये की वजह से खुद पर एतमाद खो बैठते हैं। आलिया ने अपना घर, अपनी शादी और साल-साल का ख्वाब खोया था, लेकिन उसने अपने अंदर छुपी उस औरत को वापस पा लिया था, जो फैसले ले सकती थी, दूसरों को बचा सकती थी और बगैर किसी मर्द की मंजूरी के अपनी रोशनी में खड़ी हो सकती थी। ईद की रात अहमद ने सोचा था कि एक लफ्ज़ ठीक है, हालिया की शिकस्त का सबूत था। दरहकीकत वो लफ्ज़ किसी शिकस्त खुर्दा बीवी का जवाब नहीं था, बल्कि उस औरत का पहला आज़ाद फैसला था, जिसने अपनी कहानी खुद लिखने का अहद किया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।